place. Kindness, kindness. Oh, whenever you try this, you will bring a smile to someone's face. And you can put it in your words. And everything you say. So very good morning, everyone. Good morning, everyone, and welcome to your money mastering session. We will be starting with today's practice in the next minute. आप सब लोग अपने नोटबुक पेन के साथ रेडी रहिएगा. आपको अगर if you want to take notes of what is being shared in the session, please write that down because today we are coming to the next chapter. So let's begin with the wonderful practice of money mastering. And thank you. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, good Good morning, everyone. morning. Good morning. Very good morning. Good morning to all my Shukrana Good friends. morning. Happy Shivratri. Happy सभी को Mahashivratri. Yes. happy Good morning. Good morning. Good morning. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Good morning. So Good morning, good morning, good morning. Feeling tough, and it seems like you don't have The song is enough. being played. Okay, all right. So let's welcome ourselves to the money mastering session with a lot of gratitude. Let's clap for ourselves. Let's welcome ourselves. Let's welcome Ashmi family. Wonderful. So, good morning, everyone, and welcome. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Very, very active. Good morning to all. Good morning. Very good morning. Very good morning, ma'am. A day to begin with. So, what are you grateful when you listen to this song? Don't you recall मैं किस चीज के लिए grateful हूँ अपनी life में? So, everyone again shout out one thing you are grateful for. So, I'm grateful for my house. I'm grateful for you, ma'am. Family. I'm grateful for Annie, I'm grateful for I'm grateful for life element, for this life. I'm grateful for safety. everything. I'm For my house, for my everything. Keep saying thank you very much, and thank you for being here. I'm grateful for you all to be committed to make your life really prosperous. अपनी जिंदगी को खुद बहुत बहुत riches में लाने के लिए आप सबके कमिटमेंट के लिए thank you very much for being here. So happy birthday to people who are born on today's beautiful day. आपको बहुत 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 शुभकामनाएं एक प्यारे दिन की, एक प्यारे जीवन की, एक प्यारे नए साल की शुरुआत करने के लिए. आपके सारे सपने, आपकी सारी तमन्नाएं जो दिल से निकले वो जरूर पूरी हो. बस सीखते रहिए, पूरी करते रहिए. हर चीज जो आपको लाइफ में प्राप्त करनी है उसके लिए कुछ ना कुछ सीखना होता है. ऑलवेज रिमेम्बर, आपने रोटी खानी है तो रोटी बनानी सीखनी पड़ेगी. आपने साइकिल चलानी है तो साइकिल चलानी सीखनी पड़ती है. आपको हलवा खाना है तो हलवा बना लो, या तो बनाना सीख लो, या बनवाना सीख लो, या लाना सीख लो, या कमाना सीख लो. कुछ तो सीख लो कि हलवा आपके पास आ जाए. तो एवरीथिंग यू नीड इन योर लाइफ यू हैव टू लर्न हाउ टू बी देयर. और कितनी चीजें आपने लाइफ में ऐसी प्राप्त करी होंगी जो आपको सीखे और आपने सीख कर उस चीज तक पहुंची. वैसे ही उन सब चीजों को अपनी लाइफ में लेके आना जो आपके लिए जरूरत है, जो आपको सच में रिक्वायर है. उन सब के लिए एक चीज जो सीखनी पड़ेगी वो है टू बी ग्रेटफुल फॉर. रियली रियली ग्रेटफुल फॉर. और जितना आप ग्रेटफुल रहोगे बाकी सब चीजें बहुत आसान हो जाती है. एंड जैसे अभी हम सॉन्ग सुन रहे थे तो ये सॉन्ग के अंदर है कि जब वो बच्चे बोलते हैं आई एम ग्रेटफुल फॉर माई टीचर, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर द फूड आई हैव टू ईट, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई नेबर्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई डॉग. तो मुझे एक चीज समझ आई, जैसे कि अगर सपोज इंसान कई बार नहीं करता अगर ग्रेटफुलनेस, तो क्यों नहीं करता? शायद उसकी कोई ईगो है, या शायद उसका कोई अहंकार है, या उसके कुछ अंदर ना वो नहीं होती जो कुछ होता है ना, वो वाला अकड़ होती है, या कुछ होता है कि किस चीज की शायद थैंक यू करना. बट व्हाट आई रियलाइज कि शायद जो अहम भी बना होगा, जो पहली बार भगवान ने अहम बनाया होगा, अहम मीन्स मैं मीन्स मी, तो जब मैं बना होगा तो वो भी प्रभु ने इसलिए बनाया होगा, परमात्मा ने, कि चलो जो भाई हर किसी की अपनी अपनी दुनिया है, हर किसी का अपना अपना एक संसार होता है, एक अपने अहम का आकार होता है जिसको हम अहंकार बोलते हैं. तो अहम का आकार जो होता है, भाई ये वाला डिपार्टमेंट तेरा है, इन सबको तूने थैंक यू करना है.
उसका जो डिपार्टमेंट है जिसमें वो बोलेगा मेरा शरीर, मेरी आंखें, मेरी मम्मी, मेरा पापा, मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे पैसे, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, ठीक है, वो उसके वाले डिपार्टमेंट में चीजें, उन सब को ग्रेटफुल वो होगा। तो यानी कि आई थिंक शायद जब प्रभु ने गुस्सा बनाया, क्यों बनाया, कहते हैं ना परमात्मा ने सब कुछ बनाया, तो परमात्मा ने हर चीज जब बनाई होगी, ये थोड़ा ना सोच के बनाई होगी कि मैं इससे अपने बच्चों को खराब करूंगा या इनको बर्बाद करूँ। जैसे घर में माँ बाप भी होते हैं, तो वो कुछ भी फैसिलिटीज देते हैं तो वो बच्चों की बेटरमेंट के लिए देते हैं। तो अहम भी शायद इसलिए बना था कि जो भी चीजों को तुम मेरा बोलते हो, कि मेरी टीचर, मेरा स्कूल, मेरा ये जो भी आप बोलते हो, ये इन सबको दिल से शुक्रगुजार होना का जिम्मा तुम्हारा है। पर क्या हम मेरी चीजों के लिए शुक्रगुजार है, या हम मेरी जो जिसको मैं मेरा बोलती हूँ उनके लिए भी हम लोग कई बार शुक्रगुजार होना भूल जाते हैं। जैसे मेरी बीवी, हम कह देते हैं मेरा पति, मेरी बीवी, पर क्या हम उनके लिए कंप्लेंट कर रहे हैं या ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं? मतलब ये भी मेरे को एक क्वेश्चन गाना सुनते सुनते आया। जब वो गाना चल रहा था मैं चुपचाप बैठ के देख रही थी और साथ साथ में गुनगुना रही थी और अपनी लाइफ में देख रही थी व्हाट आई ग्रेटफुल फॉर। And when the moment I said I grateful for my teacher, for my towel, for my fridge, for my जो भी मेरे को अपने रूम में दिख रहा था उस समय सब कुछ, मैं सबके लिए थैंक यू कर रही थी। तो आई कुड से दैट कि मैं माय बोल रही तो रही हूँ इस समय, पर इस समय जब मैं माय बोल भी रही हूँ तो इसमें एरोगेंस नहीं आ रही, या मैं कहते हैं ना हर चीज में माय मेरा क्यों घुसा रहे हो। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जाते हैं तो ग्रैटिट्यूड करते हुए अगर आप माय भी बोल रहे हो तो आप में उसमें एक अपनापन है। इट्स नॉट एरोगेंस, इट्स नॉट मोर, इट्स अपनापन है कि आप और वो एक हो गए हैं और आप उसको दिल से शुक्रगुजार हो रहे हो। सो आई थिंक फ्रॉम टुडे यू कैन जस्ट स्टार्ट काउंटिंग द थिंग्स यू हैव मासी, यू हैव चाचू, यू हैव दादू। अगर आपको कोई भी चीज ऐसी लगती है जिसको आप कह सकते हो मेरा है, जो आपका नहीं है वो सेकेंडरी है, पर जिसको आप अपना कह सकते हो एटलीस्ट उनके लिए हम दिल से ग्रेटफुल होना शुरू हो सकते हैं बाय फाइंडिंग थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। आई थिंक ये एक ऐसा कार्मिक सर्कल है। हम कर्मों की दुनिया में जब घुसेंगे कभी किसी और सेशन में, यू विल गेट टू नो कि जिस भी चीज को जो आपके वाले एक येलो सर्कल में आ जाते हैं, इसको रेड सर्कल, येलो सर्कल्स बोलते हैं, बुद्धिज्म में भी सर्कल, जो भी आपके किसी ना किसी एक क्षेत्र में, आपके मंडल में या आपके चक्र के अंदर आ रहे हैं लोग, चाहे वो आपके ड्राइवर है, चाहे वो आपकी मेड है, चाहे वो आपके पड़ोसी हैं, अगर आपको वो दिख रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं या आपसे बातचीत कर रहे हैं कोई लोग, तो वो किसी ना किसी आपके कार्मिक सर्कल के पार्ट है। मतलब आप ये सोचो ना, दिल्ली में जैसे हम रहते हो, दिल्ली के अंदर पता है कितने, नाना करते 1 करोड़ लोग होंगे, 1 करोड़ तो हैं दिल्ली के अंदर ही। 1 करोड़ लोगों में से आप अगर सपोज आप दिल्ली में रह रहे हो तो आप कितने, आप जिस भी एरिया में रहते होगे, आप कितने लोगों को जानते हो, देखते हो, सुनते हो। टीवी पे भी अगर मिला लोगे तो आप मैक्सिमम, अगर मैं अपना देखूं तो मैं मैक्सिमम 10 लाख तो बहुत ज्यादा लोग होते हैं, 10 लाख भी नहीं, 5 लाख। अगर मैं अपने आसपास लाइव में समझू 1 लाख भी नहीं होंगे मेरी जिंदगी में लोग, मैक्सिमम 1 लाख। मतलब अगर मैं अपने पूरे मोहल्ले, पूरे क्लाइंट्स, पूरे प्रोफेशनल लोगों को, सबको, और जो मेरे साथ अक्सर मतलब जो मेरे किसी न किसी टच में आते हैं या मेरे किसी लिंक में आते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जिनको मैं कह सकती हूँ ये मेरे सोशली नोन है या मैं इनको जानती हूँ या ये है, अगर कोई भी कहीं भी आपको मैं और मेरा की कैटेगरी में साउंड कर सकता है, 100% लोगों के साथ आपका कोई ना कोई लेना देना होगा। कार्मिक सर्कल्स ये बोलते हैं। तो अब क्या लेना देना होगा, या तो कुछ माफी लेनी देनी है या उसका कुछ थैंक यू लेना देना है। अब सबसे इजी चीज ये है, अगर किसी माफी भी लेनी है, किसी को नेगेटिव बोल भी दिया हो, तो भी आप उसको 10 टाइम्स थैंक यू करके दिल से शुक्रगुजार होके उस नेगेटिव सर्कल को भी आप कंप्लीट कर सकते हो। ये तो हमने पहले भी बोला था ना, एक गलती को कॉम्पेट करने के लिए 10 टाइम शुक्राना करना होता है दिल से। तो नाउ if you really want to complete your circles in your life, really, मतलब कहते हैं ना, इस दुनिया से बस मुझे बाहर निकालो। दुनिया मीन्स सुख की दुनिया से। अगर आप खाली सुखों की दुनिया में जाना चाहते हो, आप बोलोगे ऐसी दुनिया भी कोई होती है? हाँ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर तो सुख और दुख दोनों है ना, वहां पर अब डिपेंड करता है आपका वाले कौन से सुख है। तो 7 टाइप की बोली दुनिया होती है, यहाँ पर सिर्फ सुख ही सुख होते हैं। पर आपके वाले सुख कौन सा? किसी को कोई कहे मुझे स्वर्ग ऐसा चाहिए, स्वर्ग कैसा? किसी को स्वर्ग में बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, हाँ, शोहरत चाहिए होगी, नाम चाहिए होगा, ठीक है। किसी को, जैसे आदमियों से पूछ लो किसी स्वर्ग क्या, जहाँ पे अप्सराएं होंगी, अब उनके स्वर्ग में अप्सराएं दिख रही हैं उनको जो इनको बड़ा पैम्पर कर रही है, इनकी बड़ी सेवा कर रही है। अब किसी लेडी से पूछोगे आपका स्वर्ग कैसा है, भाई जहाँ पे मेरा परिवार बड़ा खुश है, सब लोग आपस में बड़े प्यार से बैठते हैं, सब लोग मीठी बातें करते हैं। अब उस लेडी के स्वर्ग में तो अप्सराएं नहीं दिख रही उसको, तो ये क्या हुआ? हाँ, ये अलग अलग स्वर्ग होते हैं।
ऑल स्वर्ग्स आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट डिफरेंट हैवेंस, पर वही सेम हैवेंस जब आप दिल यहाँ पे जिंदगी में धरती पे क्रिएट करना सीख जाओ, देन ओनली यू गेट एन एक्सेस हाउ टू एंटर दोज रेल्म्स ऑल टुगेदर, रेल्म्स कहते हैं। परंतु उसके लिए सबसे पहला क्या, शुक्रगुजार होना, हर उस चीज के लिए शुक्रगुजार हो जाना जो है, जो इस धरती पे है, हर चीज के लिए। पर स्टार्टिंग कैसे करनी है, एटलीस्ट जो आपके अपनी चीजें उनसे तो स्टार्ट करो, ठीक है। तो आपके पास पास्ट में किसी ने भी आप पे खर्चा किया, आप पे पैसे लगाए, अब मनी की दुनिया में आते हैं, अब इस समय है तो बहुत कुछ, पर मनी की दुनिया में फोकस करते हैं फिर से। तो आपके ऊपर कोई भी खर्चा हुआ आपके ऊपर, ओके, आपके लिए किसी ने कुछ किया, उसके लिए हमने शुक्रगुजार होना सीखा। फिर हमने जो आज की डेट के अंदर आप कुछ भी किसी को ले रहे हो, पैसे किसी से ले रहे हो या दे रहे हो, इवन इफ यू डू अ बिल, किसी को बिल भी, अगर किसी को कुछ पैसे दिए और उसने आपको बिल दिया, या आपके पास कोई बिल आया जिसके आपको पैसे देने हैं, हाउ टू बी ग्रेटफुल इवन फॉर दैट सिचुएशन। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि वो आपको बिल आया तो आपका बिल है ना। तो इफ यू अंडरस्टैंड, आपने कोई खर्चा किया या आपने कुछ कंजम्पशन किया है, तो आपकी किसी भी चीज के लिए आज के बाद अगर आप बिल्कुल क्लियर हो जाओ कि जो भी चीज में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि मेरे एम्प्लॉय, मेरा घर, मेरे बच्चों की फीस, तो जो मेरे लिए है, मेरे को मेरे वाली चीजों में तो कम से कम कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड कि जो एटलीस्ट जिसमें मैं इन्वॉल्व हूं, मेरा, मैं से, इफ यू अंडरस्टैंड, आप समझे अहंकार, धीरे धीरे आपका अहंकार भी कैसे धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप हर चीज के अंदर शुक्रगुजारिता ला रहे हो। लाइक दिस इज सच अ थिंग विच आई कुड नेवर थिंक बिफोर टुडे, कि हाँ मेरे को जब मैं अपनी अपनी वाली चीजों के अंदर भी शुक्रगुजार नहीं हूं, तो ही मेरे को कहीं पर नेगेटिव साइड पे लेके जा रही है ये चीज, जो वरना चलो अब ये बहुत डीप से स्पिरिचुअलिटी में चली जाएगी, इसको यही रोकते हैं, पैसों की दुनिया में वापस चलते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने पास्ट में भी सब कुछ अपना ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेजेंट में भी सब कुछ ठीक कर रहे हैं। उसके बाद हमने सपनों की दुनिया में घुसे कि सपनों की दुनिया में 3 स्टेप्स कौन से हैं जो आपने हर रोज 8 मिनट विजुअलाइजेशन में काम करना है। कितने लोग कर रहे हैं हर रोज 8 मिनट, अपना अलार्म लगाकर, फोन पे टाइमर लगा के 8 मिनट का विजुअलाइजेशन, अपने उस सपने का जो आप सच में पूरा करना चाहते हो। 8 मिनट रोज मिनिमम, वैसे तो 8 मिनट वाले कितने भी आप कर सकते हो प्रैक्टिस, मतलब 2, 3, 4, अगर 1 कर रहे हो तो बोलो 1 स्लॉट, अगर आप 2 कर रहे हो तो बोलो 2 स्लॉट, 3 कर रहे हो तो बोलो 3 स्लॉट। 8 मिनट्स के मैं 3 स्लॉट कर रही हूँ, 3 स्लॉट मतलब 3 टाइम्स कर रही हूँ उसकी प्रैक्टिस। क्योंकि ये जितने ज्यादा होते हैं, जैसे कि हम कभी कभी जैसे सिर्फ किसी से टॉपिक के ऊपर जब कराते हैं प्रैक्टिसेस, तो जैसे कि चाहे रिट्रीट्स में हो या ग्रुप्स में हो, बिकॉज अभी तो हम लोगों ने आज तक कभी कॉन्सेंट्रेटेड रिट्रीट्स की नहीं। कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होता है, जैसे किसी एक ही टॉपिक के ऊपर पूरा उसी के ऊपर सारा फोकस लगा दो अपना, तो हर 1 आवर के अंदर 8 मिनट का एक आता है विजुअलाइजेशन। हर 1 घंटे में एक आएगा स्लॉट जिसमें आप विजुअलाइज करोगे। तो क्या होगा कि अगर सपोज पूरे दिन के अंदर आपके सपोजिंगली हम 12 घंटे का भी अगर ट्रेनिंग ले रहे हैं, 12 तो मिनिमम होता है, तो 12 घंटे में भी आपने 12 स्लॉट्स विजुअलाइज करे हैं। सेम चीज की आप बार बार चेंज नहीं करोगे, आप सेम एक ही चीज पे फोकस करके बार बार उसी के ऊपर ध्यान दोगे। इससे क्या होगा, इससे उस वाले पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर ड्रीम को, डिजायर को, या जैसे कि हम जब कंपनीज में करवाते हैं तो कंपनियों का विजन होता है कि हाँ इतना हमारे को महीने का टर्नओवर करना है, सेल करना है, या जैसे कि जो भी उनका होता है, टीम्स होती हैं, उनकी सेल्स टीम्स होती हैं, कई बार सेल्स टीम से सेम चीज के लिए फोकस्ड नहीं होती हैं, तो क्या करना, तभी उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते हैं। तो फिर उनका से 2 दिन का जैसे फोकस कई बार ऑफिस में भी करा देते हैं, मतलब सेम ऑफिस में जाओ 9 घंटे के लिए होते हैं, काम करो, पर हर 1 घंटे के अंदर ऑल विल गेट टुगेदर एंड डू अ फोकस्ड विजुअलाइजेशन। होता क्या है कि सिर्फ आपने फोकस करना है कि जैसे कि टीम का होता है कि हम इस महीने में सपोज 1000 पंखे बेचेंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है, 1000 पंखे बेचेंगे, वो भी उनकी फैक्ट्री और पंखे बना रहे हैं और उनको इस महीने 1000 पंखे बेचने हैं, 1000 एसी बेचने हैं, तो 1000 एसी बेचने हैं। तो अब आप फोकस ग्रेटिट्यूड करेंगे, वाह। ऑब्वियसली हम इसमें टेप चलाते हैं, टेप मतलब कि हम अपनी वॉइस रिकॉर्ड, जैसे मेरी वॉइस होती है तो मैं पहले से 8 मिनट्स की वॉइस रिकॉर्ड कर लेती हूँ, जैसे कि मैं उस टीम का पार्ट हूँ और मैं पंखे बेच, मतलब वो जो पंखे, एसी, जो भी जेवर, कई लोगों की डायमंड का बिजनेस होता है, वो लोग सॉलिटर्स बेचते हैं, तो वो जैसे उनको होता है कि महीने में हमने सपोजिंगली 500 सॉलिटर्स बेचे फॉर एग्जाम्पल। तो ये नहीं कि बेचोगे तो थैंक यू करोगे, यू बी राइट नाउ कि हमने इस महीने 500 सॉलिटर्स की सेल करी है। नाउ इस चीज को विजुअलाइज कैसे करना है,
तो कुछ ना कुछ में रिवॉर्ड भी रख लेते हैं हम लोग पहले से ही, कि मतलब कि जैसे आपने 500 सॉलिटर्स बेचे अगर पूरी टीम ने मिलकर, तो फिर आपको जैसे लोग ले जाते हैं बाहर ना, जैसे ग्रीस ले जाते हैं, सिंगापुर ले जाते हैं, मतलब अगर वो अपना टारगेट अकम्प्लिश कर लेते हैं तो फिर टीम्स को घुमाने भी ले जाते हैं ये लोग। तो हम लोग पहले ही वो उसकी पूरी फोटोज निकाल लेते हैं सिंगापुर की, कि ये जगहों पे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो उसको पहले दिखाते हैं उनको, उनका विजन बोर्ड बनाते हैं कि देखो तुम सब लोग जा रहे हो सिंगापुर में, कितने मजे कर रहे हैं, हम लोग सेंटोसा जा रहे हैं, हम लोग यहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये खा रहे हैं, इस होटल में रह रहे हैं। तो ऐसे करके विजन बोर्ड बना लिया। हाँ, तो मतलब उनको उनके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि यहाँ हम जा रहे हैं और ये हम एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, सारी सारी रात हम लोग ऐसे दारू वारू जो भी पीते हैं लोग, खूब मजे करते हैं, तो चलो उस टाइप से बीचेस पे घूम रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। नाउ वंस यू आर क्लियर कि अच्छा और हमारे को बोनस मिल रहे हैं, हमारी सैलरीज के अंदर ये इंसेंटिव आ रहे हैं, सब कुछ पहले से सेट होता है, 500 का टारगेट है, इतना इतना सब कुछ मिलेगा, क्लियर। Once you are clear about your vision, once you're clear about your strategies, once you are clear about what you need to achieve and why you need to achieve। अब बंदे को पता है मेरे महीने की सैलरी वैसे 1 लाख रुपए है, परंतु मेरे को 1 लाख का बोनस मिल रहा है अगर हमारी टीम ने पूरे उन्हें 500 सॉलिडर बेच दिए, फिर हम घूमने भी जा रहे हैं, अगर सपोज करें फैमिलीज भी अलाउ कर देते हैं कि अपने साथ एक बंदा कोई अलाउड है तुम्हारा, तो मतलब अपने पार्टनर के साथ आप एंजॉय करो फॉरेन लोकेल के ऊपर, तो बंदे को थोड़ी खुशी आती है, वो खुशी हमें बनानी पड़ती है ऑब्वियसली, बोल बाल कर उनको एक्साइट करना पड़ता है कि उनको खुशी आ जाए इस चीज को सुनकर। तो वो हो गए। अब ठीक है, अब सब कुछ डन है, हाँ डन है। अब क्या करना है, अब आपने उसी चीज को सोचना है, सबसे पहले तो सोचना शुरू करना है, पर सोचना तक कैसे जाओगे, लिखकर, बोलकर, सुनकर, देखकर, ये 4 चीजें रोज करनी है। तो पहले इनको लेके जाते हैं पास्ट में भी तो कभी ना कभी बेचे है ना तुमने, हाँ, ये नहीं कि तुमने अपने वो अकम्प्लिश करे कि नहीं अपने टारगेट, कोई बात नहीं, पर बेचे तो सबने है कभी ना कभी अपने सॉलिडर्स। हाँ, तो जब बेचे थे उन क्लाइंट्स को याद करो, उनको थैंक यू बोलो, उन्होंने जो पैसे दिए थे, पेमेंटें दी थी आपको, उनको थैंक यू बोलो। और इस वाले पूरी प्रोसेस के अंदर ना सिर्फ एम्प्लॉइज या टीम्स या उनके जो टीम हेड्स होते हैं, बल्कि जो ओनर्स होते हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनीज के वो भी इंक्लूडेड होते हैं, सारे के सारे। इस समय कोई अलग नहीं है, सबके सबका एक ही टारगेट है कि 500 सॉलिडर बेचने इस महीने के अंदर। नाउ पास्ट के अंदर जाओ, सब कुछ करो, जो भी करा के सारा पास्ट का पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर प्रेजेंट में लाते हैं। क्यों बता रही हूँ, आप लोग किसी भी फील्ड में हो प्लीज समझिएगा, प्रोसेस सेम ही होता है। हम चाहे एक इसको कहते हैं, चाहे हम एक मिनी मतलब छोटे फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं, चाहे हम एक बड़े फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं, यानी आप चाहे 1 लाख रुपए के लिए आप टारगेट कर रहे हो, चाहे आप इस समय 100 करोड़ का टारगेट कर रहे हो, फॉर्मेट सेम है, फॉर्मेट सेम है। यहाँ पर ट्रेनिंग्स इंटेंसिव हो जाएंगी। ट्रेनिंग मतलब भाई बड़ा कोई टर्नओवर खींचने की कोशिश कर रहे हो, उतना ज्यादा भी तो मेहनत करोगे ना, अंडरस्टैंड। मेहनत मतलब फोकस पे तो उतना ज्यादा लगाओगे। तो फिर इन लोगों का, और इनके ऑफिस में ही होता है मतलब जनरली, तो शुरू के 2 दिन हम लोग फोकस इनको ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद काम चलता रहता है। पर वो काम जब चलता होता है, इवन जब लंच टाइम भी होता है, इवन ब्रेक टाइम भी होता है, उस दौरान पे भी उस ऑफिस के अंदर जो एनवायरनमेंट है, इवन जो म्यूजिक भी बज रहा है उस 1 महीने के अंदर, म्यूजिक मतलब जो म्यूजिक बजता है ऑफिस के अंदर, वो भी बड़ा ध्यान से चूज करना पड़ता है हम लोगों को कि म्यूजिक क्या है, सुन क्या रहा है इंसान, सोच क्या रहा है। तो सोच क्या रहा है, उनके सबके टेबल्स के ऊपर विजन बोर्ड लगे हैं कि नहीं लगे, जितनी भी टीम्स हैं, और सेम विजन बोर्ड सब टीम्स का होना चाहिए। यानी कि उसने कुछ और लगा लिया, उसने कुछ और लगा लिया, नहीं, सबका माइंड आप समझिए, पूरी की पूरी एनर्जी सिर्फ एक चीज पे फोकस कर दी सबने। अगर 100 की टीम है तो 100 के 100 लोग एक चीज पे फोकस हो रहे हैं ना, उसी चीज को वो लिख रहे हैं। हर रोज मॉर्निंग में उठते लिखना है। अच्छा, इनके ग्रुप्स बने होते हैं, ग्रुप्स में ही लिखना होता है, ये नहीं कि मतलब आप अपने कहीं पे भी लिख रहे हो, नहीं। तो उसमें पेपर पे लिखा, अगर पेपर पे वो लिखना चाहता है, फोटो खींची, ग्रुप में डाला कि मैंने सुबह का लिखा, ओके। जिसने ग्रुप पर लिखना है वो डायरेक्ट लिख लेता है, ऐसे एक टीम ग्रुप बन जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है इस तरह से। तो इनके अलग अलग जैसे टीम हेड्स बना दिए, उनके 10 के 10 टीम ग्रुप टीम बना दी। तो सबने मॉर्निंग अपनी ग्रेटिट्यूड करा, किस बारे में, ओनली अबाउट द क्लाइंट्स यू सोल्ड योर डायमंड्स टू, ओनली अबाउट द पीपल हु मेड योर पेमेंट स्मूथली, ओनली अबाउट द पीपल हु वियर डायमंड्स, आई मीन और हु बाय डायमंड्स। तो डायमंड्स रिलेटेड ही आपको ग्रेटिट्यूड करना है, कोई भी 10 बेचना और से लेने के लिए। एंड अकॉर्डिंगली पूरा दिन, और दिन में विजुअलाइजेशन कम से कम 10, मिनिमम 10 करते हैं। क्यों 10 की क्यों जरूरत है, देखिए ये बड़ा नपा तुला काम होता है, आपने ज्यादा कुछ नहीं करना। और विजुअलाइजेशन कैसे, आपकी 8 मिनट की कैसेट चलेगी भाई, शुरू में तो मैं ही कराती हूँ जब 2 दिन लाइव होते हैं, तो उसके बाद कैसेट चलती है। कैसेट क्या मतलब,
सारे के सारे लोग जैसे अपने अपने डेस्क पे भी बैठे हैं तो इनको उसी टाइम के ऊपर अपने लैपटॉप पे आना है, सिस्टम सबके आगे लगा ही होता है, तो वहीं पे जूम पे आ जाओ सारे के सारे इकट्ठे होकर। तो जूम पे चलेगी या इनके फोन पे चलेगी, जैसे कोई फील्ड में गया हुआ है तो फोन के ऊपर 10 मिनट अपने आप को 8 मिनट के लिए फ्री करे, किसी मीटिंग में नहीं जाना, 8 मिनट सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे उस टाइम पर। Why? Because focused gratitude is the biggest puller, magnetic puller। तो आप 8 मिनट के लिए कहीं पे भी हो, किसी ने टॉयलेट में बैठना है टॉयलेट में जाओ, जो भी है, पर 8 मिनट तक अपना आराम से बैठना है। वीडियोस ऑन होनी चाहिए इस टाइम, सबकी वीडियोस ऑन रखते हैं ताकि पता रहना चाहिए कि इस 8 मिनट के लिए पूरी की पूरी टीम फोकस्ड विजुअलाइजेशन के अंदर है। और हाँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि वाह, हम इतने सालों से डायमंड के बिजनेस में हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं, हम दुनिया को उनके सपने पूरे करने के लिए इतने सुंदर सुंदर डायमंड, इतनी बढ़िया क्वालिटी के, इतने बढ़िया कैरेट के हम प्रोवाइड करते हैं। लोग बहुत खुश है हमारे काम से, हम बहुत खुशकिस्मत हैं, हम लोगों की दुनिया में चमकते हुए इन हीरो को लाने के लिए अपने काम के थ्रू उनको सपोर्ट करते हैं। वाह, वी आर वेरी, मतलब ऐसे करके यू आर वेरी प्रिविलेज। देन वी हैव बीन सेलिंग डायमंड्स फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स। हम उन सब खरीदारों के लिए शुक्रगुजार हैं जो हमसे डायमंड्स लेते हैं और हमारे को पेमेंट्स बिल्कुल नियमित तौर पे करते हैं। वाह, ऐसे करते करते आगे आ जाओ। हम बहुत खुश हैं इस समय 2022 के, हम लोग सितंबर मंथ में है इस समय। हम जो डायमंड्स के है, पूरी दुनिया में शादियों की तैयारियां चल रही हैं, सब लोग अपने अपने लिए डायमंड्स की शॉपिंग कर रहे हैं। हमारी कंपनी ने इस महीने में 500 डायमंड बेचे। वाह, हम कितने खुश हैं। हमने टारगेट रखा था 500 डायमंड का, ये तो हमारा कुछ ही दिनों में रिसीव हो गया। उसके बाद हम लोग अगले भी कुछ दिनों के अंदर कम से कम तो मतलब जो भी उन्होंने बेचा होगा 200 डायमंड हमने और बेच दिए। वाह, हमने 500 डायमंड्स का टारगेट रखा था, हमने 700 डायमंड्स बेचे। हम बहुत खुश हैं और हमेशा इट्स लाइक हम बहुत खुश हैं, हम लोगों की टीम बहुत खुश है, हम लोगों ने मतलब बेंचमार्क रिसीव कर लिया वगैरह वगैरह, जो भी वो बोल रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं अंदर ही अंदर से। हम सब लोगों को बहुत खुश है, हमारी कंपनी ने हमारे को इतना डबल बोनस दिया, हम लोग सिंगापुर में इतने मजे कर रहे हैं, इतना मजा आ रहा है अपने पार्टनर्स के साथ, कितना बढ़िया होटल है, कितना बढ़िया हमारा खाना पीना है, घूमना है। अब ये क्या है, ये 8 मिनट तक हर कोई सिंगापुर भी होके आया है, 8 मिनट के अंदर अंदर ही उसको बोनस मिला, उसको ये भी पता है बोनस से मैंने क्या किया, वो भी हम थोड़ा कुछ बताते हैं। मैंने इस समय इतना गिफ्ट लिए, ये किया वो किया, क्योंकि दिवाली का टाइम जैसे भी इस समय आ रहा है तो हर किसी के खर्चे बढ़ते हैं। तो इस टाइम पे हम पहले ही हम ना उनके साथ विजन क्रिएशन की जब मीटिंग करते हैं तो विजन क्रिएशन के टाइम पे हम उनसे पूछते हैं कि जैसे कंपनी का विजन ये है, तो कंपनी का विजन ये, आपका विजन ये क्या है, आपके खर्चे क्या है, तो मतलब उनके खर्चे पहले निकलवाते हैं हम। तो पूरी ट्रेनिंग होती है 1 डे की, जिसके अंदर वो लिखते हैं कि अगर आपका क्या विजन है, आपको कितना कमाना है अगले 2 महीने में, अगले 5 साल में, अगले 1 साल में फॉर एग्जाम्पल। क्योंकि कंपनी जो मर्जी बोलती है, बंदा कहेगा मेरा क्या लेना देना, मेरा कोई, क्योंकि उसकी जो जरूरतें हैं, क्या कंपनी उसके बारे में सोच रही है या उसका क्या विजन है उसके बारे में सुन रही है। तो ये बहुत जरूरी, इसको कहते हैं विजन अमेलगमेशन। ये भी बहुत जरूरी होता है। कई बार घर में जैसे आप बाप कुछ सोच रहा है तो क्या बीवी बच्चे भी सेम सोच रहे हैं, तो ये इसको कहते हैं आपस में बैठ के अपना विजन अलाइन, इसको विजन अलाइनमेंट बोलते हैं, विजन अलाइनमेंट मीटिंग्स। तो जब तक विजन अलाइन नहीं होगा तब तक वो उस डायरेक्शन में भाग रहा है, वो उस डायरेक्शन में भाग रहा है, उधर भाग रहा है, इसलिए तो अचीव नहीं हो पा रहे। कई बार जब परिवार के विजन सेम ना हो या कंपनी के विजन सेम ना हो या पार्टनर्स के विजन सेम ना हो, तो पैसों की दुनिया में जब हम बड़े वाली टारगेट्स को अचीव कर रहे होते हैं तो विजन अलाइनमेंट भी बहुत बड़ी चीज है। अगर आप सिंगल वाले पे काम कर रहे हो, सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हो, सिर्फ अपना, तो भी आपकी विजन अलाइनमेंट बहुत बड़ी चीज है कि आपने पहले विजन बनाया, मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, ताकि उस विजन को ताकत मिले, और अब अपना काम स्टार्ट किया। पर मेन बात हम जो कर रहे थे विजुअलाइजेशन, कि आप लोग दिन में कितनी बार कर रहे हो, कितने स्लॉट्स कर रहे हो। जब हम टीम्स के लिए करते हैं तब भी दिन में 10 टाइम्स। हमने इतनी कंपनियों के साथ काम किया आज तक, और मैं बता रही हूँ ऐसी ऐसी कंपनी होती है बिल्कुल ठुस कंपनियां, ठुस मतलब जिनके कुछ भी काम ना, और वो लोग उस पर्टिकुलर फील्ड के टॉप मोस्ट ग्रॉस टर्नओवर्स में से आ जाते हैं। कैसे? सिर्फ यही जो मैं आपको सारी टेक्निक्स बता रही हूँ, सिर्फ इन्हीं को फॉलो करते करते। मतलब क्यों, आप देखिए, जब आप ये सोचो 100 लोग 8 मिनट के लिए एक चीज पे फोकस करके बैठे हैं, एक ही चीज के ऊपर, तो क्या उसको पावर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एनर्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सोचो, मतलब कि 100 लोग एक ही चीज के ऊपर। तभी तो जब हम जनरल लोगों को बताते हैं कि अगर आप कोई मूवी भी देख रहे होते हो, एक मूवी अगर सपोज 3 घंटे की मूवी है, हाँ 3 घंटे में, चलो आप बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी आया, थोड़ा आपने बातें करी, चलो मोटा मोटा मान लो आपने 1 घंटा तो कॉन्सेंट्रेट किया होगा ना। अब आपने कौन सी मूवी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो आप 1 घंटे तक? अगर तो वो मूवी सपोजिंगली बहुत हंसने खेलने की मूवी है, नाचने गाने की मूवी है, और आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, वेरी गुड।
अगर वो मूवी रोने धोने की मूवी है, मतलब जिसमें सिर्फ रोना धोना मार काट की मूवी है, और आपने उस पर कॉन्सेंट्रेट करके बैठे हुए हो, आपको कितनी बार लगता है कि हाँ आप मूवी में थोड़ा बहुत तो ध्यान से देखते ही हो ना। 8 मिनट तक अगर आपने एक पर्टिकुलर सीन के ऊपर ध्यान लगा दिया, समझ लो वो आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर चुके हो। 8 मिनट तक आप किसी भी चीज पे, चाहे वो न्यूज सुन रहे हो, चाहे वो सीरियल देख रहे हो, चाहे वो हवाएं देख रहे हो, चाहे गार्डन में घूम रहे हो, आपने अगर अपना फोकस्ड अटेंशन, ग्रेटिट्यूड तो सिर्फ अच्छी चीजों पे लगाते होगे ना, तभी तो वो तो हम सिखा रहे हैं आपको कि ये करो, ये करना, ये अच्छी बात करना तो सिखानी पड़ रही है मुझको। और हम जो वैसे करते हैं, जैसे कि आपने सपोजिंगली किसी ने, मैंने तो देखी नहीं, परंतु किसी ने वो एक आई थी फिल्म कश्मीर समथिंग करके थी, मिशन कश्मीर, पता नहीं, फाइल्स कश्मीर कुछ ऐसा था। पर जहां तक मेरे को सुनाई दिया था, उसमें जो सीन्स थे बहुत डरने वाले सीन्स थे, डरने वाले या सैड सीन्स थे, बुरे सीन्स थे। और आप उस सैड सीन्स या बुरे सीन्स को बड़े ध्यान से देख रहे हो, नंबर एक बड़े ध्यान से देख रहे हो, फिर अपना ध्यान भी उस पर लगा रहे हो। अब जिन जिन लोगों ने 8-8 मिनट तक उस पर ध्यान लगा दिया, और कई लोगों ने तो 8 मिनट से ज्यादा ही लगाया होगा, तो सोचो कि कितना, 8 मिनट के सपोज उसने 80 मिनट लगाए, अगर 1.5 घंटे की मूवी है तो 80 मिनट उसने अगर ध्यान लगा दिया, भाई उस बंदे ने अपनी जिंदगी के लिए क्या अट्रैक्ट कर लिया। उसने किस चीज को एनर्जी दी, जिस भी चीज को आप देख रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, या मतलब लिख रहे हो, या आप सोच रहे हो। अगर आप किसी मूवी के बारे में सोच भी रहे हो, मैंने ना गलती से मैं बता रही हूँ, एक ना वो होता है यूट्यूब या कुछ होता है या फेसबुक था, जिसमें रील्स आती हैं, रील्स होती है छोटी छोटी होती हैं, वो ना 60 सेकंड की होती होंगी, वो छोटे छोटे सीन्स आते हैं। तो मतलब कि एक दिन मैं किसी सीन को देख रही होंगी, अच्छा सीन, तो मैं तो कॉमेडी की देखती हूँ नॉर्मली ना, हंसने खेलने, ये छोटे छोटे बच्चों वाले नहीं होते, प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, हंस रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है छोटे छोटे बच्चों को हंसते खेलते देखना। तो वो छोटी छोटी मूवीज होती हैं, कुछ कुछ सेकंड्स की होती हैं, तो पता नहीं क्या कहते हैं यार, मुझे ये समझ नहीं आता, वो यूट्यूब पे भी आती है और इस पे भी आती है, फेसबुक पे भी आती है। तो वो मैं देख रही थी, देखते देखते तो स्क्रॉल करो, ऊपर करो, यूं करो, तो एकदम से नीचे वाला कुछ बाहर आ जाता है। तो ऐसे करते करते आपको जो पसंद नहीं है उसको ऊपर कर देते हो, जो पसंद होता है उसको आप देख रहे होते हो। तो वो एक सीन आ गया, वो मुझे समझ नहीं आया वो क्या था, तो वो सीन आया, तो एकदम से मैं कुछ कर रही होंगी तो मैंने उसको आगे नहीं किया, तो वो चलने शुरू हो गया, और चलते चलते सीन, जो भी सीन था मुझे बाद में समझ आ गया कि उसी मूवी का सीन है, क्योंकि समझ आ गया था वो कश्मीर समथिंग का ही सीन है। तो वो लिखा भी आता है नीचे ना, वो भाई वो सिर्फ मुश्किल से 40 सेकंड का सीन होगा, जो भी उस लेडी के साथ उन्होंने किया, और जो भी जैसा भी हुआ, मैं कह रही हूँ पूरा दिन मेरे से रोटी नहीं खाई गई उस दिन। मतलब उस दिन मेरे जी कच्चा हो रहा था, और आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि मतलब वो सीन में जो देखा, या उसके बाद जो देखना एक चीज है, पर उसके साथ क्या हुआ, ये मैं सोच सोच के इतना जो भी हुआ, आई वोंट से पॉजिटिव था, नेगेटिव ही था, जो भी मेरे पे उसका असर आया, कि मतलब जो बुरा लगता है, या आपको घबराहट होती है, या चिंता होती है, या आपको गुस्सा आता है, या आपको नफरत आती है, ये सब के सब क्या है, जो आपको आपकी अनचाही दुनिया की तरफ लेके जाएंगे। तो आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो, कैसी बातें सुनते हो, कैसे गाने सुनते हो, कई बार आप देखो, आप नोट करो, हाँ, कि आप नॉर्मल हो, बिल्कुल ठीक ठाक हो, गाड़ी चल रही है, और अचानक गाना आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो, या जगजीत सिंह के गाने, हाँ, गजलें टाइप्स, तो आपको एकदम से सैडनेस सी नहीं हो जाती, हमने कई बार तो आंसू भी आ जाते हैं जो ये अजीब से गाने नहीं, गजलें नहीं होती ब्रेकअप वाले टाइप्स की, तो मतलब जो थोड़ा रोने वाली होती हैं, आप ठीक ठाक होते हो, अचानक आप सैड हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप जो गाने सुन रहे हो उसमें कुछ ना कुछ सैडनेस है। तो ये क्या हुआ, यानी कि आपने कुछ सुन लिया है जो आपके अंदर से सैडनेस को बाहर निकाल रहा है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, देखिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने आप को अमीर बनाने की, अपने आप को संपन्नता पे ले जाने की, अपने आप को खुशियों में ले जाने की। ये छोटी छोटी गलतियां जो हम कर देते हैं ना, ये छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं। आज की बात कैसे लोगों की बात में बैठना है, कैसी मूवीज देखनी है, कैसे गाने सुनने हैं। अब जैसे कि अभी गाना जो शुरू में चला था, ये कल रात को हमारे घर में, तो ये हम YouTube के ऊपर एक गाना चलाते हैं, उसके बाद उसके जैसे गाने चलने शुरू होते हैं, इतने क्यूट क्यूट गाने होते हैं ना बच्चों वाले, जिसमें आप नाचो गाओ, बच्चों वाले स्टेप्स भी सिखाते हैं वो डांस करने वाले। तो उसको करते करते इतना यू फील लाइवली, यू फील हैप्पी, यू फील जॉयफुल अबाउट इट। इंस्टेड ऑफ क्यों करना यार ऐसा काम, कोई भी ऐसी मूवी भी, कोई भी, या कुछ भी ऐसा सीन भी, कोई भी सीरियल भी, कोई भी जो आपको प्रोडक्टिवली आगे बढ़ने में हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमारा हो सकता है हम 1-2 दिन में हम दोबारा ना मिले, या किसी और प्रोग्राम में मिले, पर छोटी छोटी चीजें जो हमारे को जिंदगी में, मतलब आपका छोटा बिजनेस हो सकता है, आप अकेले काम कर रहे होंगे, आई रियली विश कि आपका बिजनेस इतना बड़ा हो जाए जितना आप चाहते हो।
आप आज जितना भी कमा रहे हो इतना कमाओ जितना आप चाहते हो। आज आपकी जो भी हालात है, घर है या जो भी फाइनेंसेस हैं, वो सब कुछ इतनी जल्दी इतना बिल्कुल वैसा हो जाए जैसा कि आप चाहते हो। पर उस चाहत तक पहुंचने के लिए उल्टे कदम चलने की बजाय सीधे कदम चलना, वो चीजें जो आपको अपनी चाहत से दूर ले जाए, मनचाहे से दूर ले जाए, वैसे वाली ना काम करके। क्योंकि आज हम जो जहां जा रहे हैं, आई मीन लेट मी शो यू, बिकॉज ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई लोग गड़बड़ क्या करते हैं, बेचारे मेहनत तो करते हैं पर उल्टे डायरेक्शन में मेहनत कर देते हैं। उल्टे डायरेक्शन मतलब जिस तरफ जाना था उसकी बजाय उल्टे। तो एक मिनट, लेट मी शो यू द सेम पेज जो हमने पहले भी आपको दिखाया हुआ है। दिस इज कॉल्ड, एक मिनट, फीलिंग्स चार्ट के अंदर, बिकॉज दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, लर्न एंड प्रैक्टिस इन योर लाइफ। कितने लोगों ने आप में से पावर बुक की हुई है हमारे साथ? कितने लोगों ने आप में से पावर बुक हमारे साथ की हुई है? मतलब देखिए, जिंदगी में अगर आपको टाइम मिले ना, सच में टाइम मिले, तो आप बेशक आजकल तो यूट्यूब के ऊपर इनकी ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल है और हमारी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। देखिए कोई कोई चीज ऐसी होती है, अच्छा आपको, आप में से कितने, आप 300 लोग अराउंड यहाँ पर हैं, कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ पिछले कुछ 10 दिन या 12 दिन जो भी हमारे हुए हैं, इसमें जो आपने सीखा वो सब कुछ आपको पॉजिटिवली, प्रोडक्टिवली, कंस्ट्रक्टिवली कहीं ना कहीं आगे ले जाने में हेल्प करेगा? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि चलो जो भी सीखा, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हो, परंतु वो कम से कम आपको एक सही दिशा के अंदर ले जाने में हेल्प करेगा। मतलब आप ये एग्री करते हो कि कम से कम इसने आपको जो भी सिखाया, चलो पॉजिटिव सिखाया, आगे बढ़ने के लिए ठीक सिखाया। बाकी आप पे डिपेंड करता है कितनी आप छोटी छोटी चाल चलते हो, एक धीरे धीरे कदम रखते हो, या दौड़ ही पड़े, क्या पता अगले 10 दिन में आपको रॉकेट लग गए हो। अगले मतलब प्रैक्टिस तो आपकी है ना, कितनी स्पीड में लेके जाना है इसको। जैसे गाड़ी है, शुरू में बंद है, धीरे धीरे उसको स्पीड में लाते हो, फर्स्ट गियर में डालते हो, फिर सेकंड गियर में डालते हो, फिर फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर। भाई आपकी गाड़ी को फिफ्थ गियर में लाने के लिए करना तो आपको ही है ना काम। तो एनीवेज, परंतु ये वो टेक्निक्स हैं जिनको आप जब भी इस्तेमाल करोगे लाइफ में, ये रिजल्ट्स देती हैं, 100% रिजल्ट्स देती हैं। डिपेंड आप कितनी शिद्दत से करते हो। तो मैं आपको बस एक टिप दे रही हूँ कि मैजिक बुक नाम से एक बुक है, मैजिक बुक की प्रैक्टिस, जो कि ग्रेटिट्यूड की, मैंने बहुत सारी जिंदगी में रिसर्च करी है, बहुत सारे कोर्सेज को लीड करा है, बहुत बहुत टेक्निक्स को लीड करा है। जैसे कि ऑन्टोलॉजी के अंदर बहुत टेक्निक्स है, एनएलपी के अंदर बहुत टेक्निक्स हैं, और बहुत सारे अलग अलग स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी बहुत टेक्निक्स है, हम लीड करते हैं। पर ये एक ऐसी चीज है जो मैजिक बुक की जो टेक्निक है, जो 28 दिन तक आपको रोज करनी है, रोज एक चैप्टर असाइनमेंट्स। आप जब तक इसको दिल से करते रहोगे, आपकी जिंदगी में रोशनी बढ़ती रहेगी। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि हाँ रोशनी बढ़ती है, मतलब पॉजिटिविटी बढ़ती रहेगी आपकी जिंदगी में। मतलब एंड यू एग्री टू इट कि जब तक आप उसकी प्रैक्टिसेस को करते हो, तब तक आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, मतलब बना रहता है माहौल। जब आप छोड़ देते हो तो वो पॉजिटिविटी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। हाँ ये सच बात है, ओके। क्योंकि जब तक आप नहाओगे, आप साफ सुथरे रहोगे, खुशबूदार रहोगे। जब आप नहाना बंद कर दोगे, आप फिर से बदबूदार हो जाओगे। तो अपनी जिंदगी में कुछ प्रैक्टिसेस को हमेशा फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ अगर आप बना के रखें, तो ये आपकी जिंदगी के लिए बेस्ट थिंग यू कैन डू, ओके। तो उसी तरह से जैसे मैजिक बुक है, वो मैं एक बुक को मैं हमेशा कहती हूँ कि उसको तो समझो रोज जैसे सुबह घंटियां बजाते हो ना मंदिर में, वैसे मैजिक बुक की प्रैक्टिस शुड बी लाइक योर टेम्पल प्रैक्टिस। शुरू में आपको सीखना पड़ेगा, बाद में तो समझ आ ही जाएगा ना आज क्या करना है मुझको, तो हर एक एरिया के अंदर। और कुछ एरियाज उसमें मिसिंग है, जैसे कुछ एरियाज जो हम कोशिश कर रहे हैं एक नई बुक बनाने की इंडियन कल्चर के हिसाब से, कुछ एरिया जैसे माँ बाप का, फॉर एग्जाम्पल अपने माता पिता का शुक्रगुजार होना। हाँ वहां पर रिलेशनशिप के अंदर आया हुआ है काफी बार, पर कई बार हमारे को फोकस करना पड़ता है। तो ये सब चीजें हम कोशिश कर रहे हैं, एक बुक जो मैजिक बुक का वर्जन, जो इंडियन वर्जन होगा, जो जिसमें इंडियन वे के अंदर आपको हर चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करके कैसे आपको ग्रेटिट्यूड करना है। सो वन डे वी विल सी टू इट। काफी लोग कोशिश कर रहे हैं, वन डे वी विल सर्टेनली मेक इट अप। ठीक है जी, तो ये बुक अपनी जिंदगी में बनाए रखना, ठीक है। सेकेंडली मैजिक मिरर वर्क की बुक है, वो भी बहुत कमाल की बुक है अगर आप कर पाओ। और थर्ड जिसको मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, दैट्स द पावर बुक। इसके अलावा जितनी भी बुक्स हैं वो आपकी चॉइस है। मैं ये नहीं कि दुनिया में तो करोड़ों बुक्स हैं, नहीं। आई वुड से देखिए, मैं हमेशा आपको समझाती हूँ, अगर आपको एलोपैथी सूट करता है तो एलोपैथी के साथ ही जमे रहिए।
अगर आपको होम्योपैथी सूट करता है तो होम्योपैथी के साथ जमे रहिए, आयुर्वेदिक सूट करता है तो आयुर्वेदिक के साथ जमे रहिए। अगर कभी होम्योपैथी, कभी आयुर्वेदिक, कभी ये कभी वो, तो थोड़ा सा अपने अपने सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो इसीलिए अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स के ऊपर हो इस समय, ये सब की सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन की सीरीज है, ओके, जिसमें ग्रेटिट्यूड पावर होती है। तो आप प्लीज इन्हीं के साथ ही स्टे करिए, इसी सीरीज के साथ चलिए, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही बाकी सीरीज काम नहीं करती, मैं कह रही होम्योपैथी भी काम करती है, एलोपैथी भी काम करती है, परंतु एक सीरीज अगर आपको सूट कर गई है तो उसी के साथ आप टिके रहिए, ठीक है, तो बेटर रहता है। तो ये अपने आप में काफी कमाल की सीरीज है, जितनी भी रोंडा की सीरीज है, जिसको स्टार्ट होती है सीक्रेट से, मैजिक पे आती है, फिर पावर पे जाएगी, फिर ये हीरो पे जाएगी, फिर द ग्रेटेस्ट सीक्रेट पे जाएगी, ऐसे करते करते इसकी काफी काफी सीरीज है आगे बढ़ते हुए, ठीक है। तो अगर आपको मैजिक समझ आ गया है तो मेक श्योर कि आप लोग जरूर अपनी लाइफ के अंदर पावर की प्रैक्टिस करना शुरू करें। पावर किसे कहते हैं? अगर आप ये चार्ट देख रहे हो, ये चार्ट देख रहे हो आप सामने, आपने देखा था, हमने शुरू में आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आप अपनी लाइफ में इस समय कहीं पे भी न्यूट्रल पे हो तो सेंटर लाइन में हो, अगर आप इस समय कर्जों में हो तो नीचे की तरफ के इमोशंस, फीलिंग्स आपकी लाइफ में आप ज्यादा यूज कर रहे हो, और अगर आप बहुत खुशियों में हो, बहुत पैसा है आपके पास, अभी मैं सिर्फ पैसों की दुनिया की बात कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आप अक्सर लाइन से ऊपर रहते हो, लाइन से ऊपर रहते हो, यानी सेटिस्फेक्शन में, होप में, एंथुजियाज्म में, एक्साइटमेंट में, पैशन में, जॉय में, तो आप अक्सर लाइन से ऊपर हो, यानी कि आपकी जिंदगी में पैसे का फ्लो ठीक ठाक चल रहा है, आप अक्सर ग्रेटिट्यूड में रहते हो, हमेशा आप पैसों के लिए जो भी सोचते हो, बोलते हो, करते हो, हमेशा शुक्रगुजार होके करते हो, तो यानी कि पैसों की अबंडेंस है आपके पास। पर पैसों की दुनिया के अंदर आप कमाल ही कर दो, मतलब आप रोशन ही हो जाओ, जैसे आप समझो ये ऊपर जो रोशनी है, तो मतलब आपकी जिंदगी पैसों की दुनिया में बहुत रोशन है, तो यानी कि आप लव की दुनिया के अंदर आ चुके हो। लव किसे कहते हैं? लव कहते हैं प्यार, प्रेम, वो नहीं जो आप दुनियावी चीजों को समझ रहे हो, नहीं, प्यार एक ऐसी चीज है जिस दिन आप समझोगे, स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में ऐसे जाओगे, आगे जाओगे, तो प्यार सिर्फ आपको आपकी सोल के साथ, या वो क्या होता है, सोल मीटिंग क्या होती है, या परम आनंद, परम प्रेम क्या होता है, ये सब बातें हम करेंगे किसी और सेशन में, पर एनीवेज लव पे मोटा मोटा बता देती हूँ। लव वो नहीं होता जो इलू इलू टाइप आप हरकतें करते हो या कोई भी सोचता रहता है दुनिया में। लव, ये जो हर्ट बनता है, ये हर्ट दुनिया में बन ही नहीं सकता, किसी और प्राणी के साथ आप कैसे बना सकते हो, ये चीज नहीं बन सकती। ये हर्ट क्या होता है, यू विल गेट टू नो व्हेन यू विल, ये हर्ट किसे कहते हैं, स्पिरिचुअल दुनिया में जाके समझ आया, अच्छा ये हर्ट इसको कहते हैं, पर ये तो बन ही नहीं सकता किसी और के साथ। हाँ, आप किसी और शरीर के साथ नहीं बना सकते, पर एक आत्मा दूसरी आत्मा के साथ बना सकती है। कैसे बना सकती है? ये कौन सा वाला अमेलगमेशन होता है, दैट्स अ स्पिरिचुअल रियल्म। पर समझने वाली बात क्या है? लव। पर जब भी ये होगा तो क्या इसके सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स होगा आपको बड़ा अच्छा अच्छा फील हो रहा होगा, यू विल फीलिंग रियली गुड, रियली वाओ, मतलब आपको बहुत रोशन फील हो रहा होगा, बड़ा हल्का हल्का, फुल्का फुल्का, बड़ा प्यारा प्यारा, गुड गुड। तो अब वो तो बहुत परम अवस्था है, हाँ, एक आनंद की अवस्था है, खुशी की अवस्था, परंतु जब आप उसको दुनियावी स्तर पे प्रैक्टिस करते हो तो उसको क्या बोलोगे? तो दुनियावी स्तर पे भी ऐसे ही लगता है, जब आपको सच में किसी से प्यार होता है, जो आपके वाले लैंग्वेज में होगा, तो आपको कैसी फीलिंग्स होती हैं जब आप कहो कि हमें सच में प्यार है किसी चीज से, किसी चीज से या किसी बंदे से, मतलब इंसान से, चीज से, बच्चे से, जो भी है, तो आपकी फीलिंग कैसी होती है उस समय जब आप कहो प्यार है? तो प्यार में नॉर्मली आपको अच्छी फीलिंग भी होती है, यस नो, मे बी गुड गुड फीलिंग होती है, यस नो, मे बी। अगर किसी ने कभी सोचा हो कि मुझे किसी चीज से प्यार है, तो प्यार जब तक आपको किसी चीज से होता है, आपको गुड गुड फीलिंग ही होती है, वेरी गुड फीलिंग, ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग। और जैसे ही वो प्यार वहां से गायब होता है, उसी चीज के अंदर आपको जलन होगी, नफरत होगी, घबराहट होगी, चिंता होगी, इनसिक्योरिटी होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपका वहां से प्यार गायब हो गया। तो अंडरस्टैंड दैट, ये जो ऊपर सबसे ऊपर शब्द लिखा है, ये लव, जहां पे भी लव होगा वहां पे गुड फीलिंग होगा ही होगा। और अगर गुड फीलिंग है तो लव है, लव नहीं है तो गुड फीलिंग नहीं है, बैड फीलिंग है वहां पे। तो फीलिंग्स की दुनिया में हमेशा अच्छा अच्छा फील करना, पॉजिटिव फील करना, जो हम कहते हैं अपने आप को पॉजिटिव, मतलब सकारात्मकता में रखना, ये लव की दुनिया का एंट्री टिकट होता है। मतलब ये एंट्री टिकट है, आगे कितना डीप जाएगा तो वो तो प्यार तो अनंत होता है, परंतु ग्रैटिट्यूड से ही आप गुड फीलिंग्स की दुनिया की तरफ जा पाओगे। अगर आपको किसी चीज के लिए शुक्रगुजारिता ही नहीं है, थैंकफुलनेस ही नहीं है, तो लव कहां से होगा? बेकार की बात है, हो ही नहीं सकता। तो आप किसी चीज के लिए शुक्रगुजार हो तो ही आप उस चीज के लिए लव फील कर सकते हो। ओके, अगर इतना समझ आ गया तो समझिएगा
लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण का नियम जो होता है कि कोई भी चीज समान चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू लॉ ऑफ लव. लव मतलब गुड फीलिंग. आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अगर गुड फीलिंग्स में रहते हो तो ही आप अपनी अच्छी चीजों को जो आप चाहते हो अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों को आकर्षित कर सकते हो बाय स्टेइंग इन दिस रेल्म. आज हम जो इस फील्ड में गुजरे हैं बिकॉज ये एक ऐसी मैंने इसको बुक नहीं बोलती हूँ, मैं इसको ग्रंथ बोलती हूँ. मैं दिखा देती हूँ इसका टॉप कवर कभी आपको अगर आपकी जिंदगी में आए तो. मतलब मैंने इसको जब जिंदगी में पहली बार लेकर आई थी मतलब पावर को. दिस इज द टॉप कवर. ओके. और ये शुरू किया आज से कुछ साल पहले की बात है. आई रिमेम्बर आई स्टार्टेड बिकॉज मैजिक बुक के एंड में पावर का नाम आता है तो मैंने शुरू करी क्योंकि मैजिक बुक ने मेरी जिंदगी में बहुत कमाल के जादू किए थे. तो उन्होंने एंड में बोला पावर बुक तो मैंने शुरू करी. पावर बुक पढ़ी तो प्यार के बारे में बात कर रहे हैं, लव के बारे में बात कर रहे हैं. और मेरे को उस टाइम पे लव समझ नहीं आता था क्योंकि मेरे को मतलब लगता था कि लव लोगों को दुनिया को समझ नहीं आता. दुनिया के लिए लव इज इक्वल टू लव टू रोमांस. तो क्या कैसी बातें कर रहे हैं हम, क्या बेकार की बातें हैं. लव ये दुनियादारी समझ नहीं सकती. तो ये काफी दिनों तक मैं अटकी रही अपनी सोच के अंदर कि बेकार है, ये बेकार है. मैं ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ मैं, पर मैं लव भी कर सकती हूँ. परंतु जब फिर दोबारा मौका आया कुछ टाइम बाद, जैसे कहते हैं ना जब जिंदगी में आना होता है किसी चीज में तभी वो उसी टाइम पे एंटर करती है. तो लॉकडाउन आया तो हमने मैजिक बुक करी. तो उसके बाद दोबारा से पावर कट मतलब ऐसा लगा कि नेक्स्ट आगे बढ़ना है. 2-3 बार मैजिक बुक कर ली, बार बार पावर सामने आ रही थी लास्ट पेजेस के अंदर. तो आई स्टार्टेड पावर बुक फर्स्टली विद माई सेल्फ एंड देन विद द पीपल लाइक सबके साथ मिलकर हमने ग्रुप में स्टार्ट करी पावर बुक. एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज रियली कुड गेट इनटू व्हाट इज पावर. ये शक्ति क्या है. हम शक्ति की दुनिया में एंटर कर रहे हैं. और ये लव जो है वो एक शक्ति है. शक्ति मीन्स पावर मतलब एक ऐसी ऊर्जा का स्रोत है जो कि हमारी जिंदगी को कितने वॉल्ट तक रोशन कर सकता है और कहाँ तक ले जा सकता है. और ये हर चीज में विराजमान है, विद्यमान है, हर चीज में है ये वाली शक्ति. शक्ति मीन्स एनर्जी. एनर्जी तो हर चीज एनर्जी का स्रोत है. आप अगर ध्यान से समझेंगे तो अब वो डिफरेंट साइंस है, जब आप बुक पढ़ोगे तो समझ आएगा. फीलिंग क्या है, फ्यूल क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह. एंड दिस वॉज द बुक विच सॉर्टेड माई लाइफ फॉर एवर. सॉर्टेड कहते हैं ना आपकी लाइफ को एक नया आयाम मिल जाना. क्यों? इसको समझ के पढ़कर मुझे समझ आया कि मैं तो सिर्फ इसको पढ़ रही थी दुनियावी चीजों के लिए, पैसा, रिश्ता, करियर, हाँ सेहत, इन सब चीजों के लिए. पर इसने जो मुझे दिया वो तो इस दुनियावी दुनिया से बहुत ऊपर दे दिया. मुझे ये समझ आ गया कि इस दुनिया को चलाने वाली वो शक्ति कौन सी है, वो शक्ति कौन है. और उसी शक्ति को समझते 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 आई गॉट इनटू मेरे को भूख लग गई, मुझे और जानना है उसके बारे में कि ये कौन है, क्या है. हाँ ये तो समझ आ गई कि हम लोग जो सोच रहे हैं, दुनिया जो चला रहे हैं, हम अपने अपने बिलीफ्स को सोच रहे हैं. भाई मेरा बिलीफ राम है, उसका बिलीफ कृष्ण है, उसका बिलीफ अल्लाह है, उसका बिलीफ गॉड है, उसका बिलीफ ये है. पर हम ही अपने बिलीफ्स को समझ रहे हैं. पर वो जो बिलीफ्स भी जो हम सोच रहे हैं उस बिलीफ से ऊपर भी कोई है जो उन बिलीफ्स को बना रहा है. भाई जिन चीजों को हम समझ पा रहे हैं या सोच पा रहे हैं वो तो हमारी पहुंच के अंदर आ गई ना. पर कोई तो ऐसा है जो इन सब चीजों को बना रहा है और हमारे तक पहुंचा रहा है. तो वो कौन है? अब अगर सपोज आप बोलो राम है तो राम माना चलो राम जी कर रहे हैं. हाँ जब एक जमाने तक मुझे भी ये लगता था कि हाँ ये राम जी, शेरा वाली माँ, यही सब कुछ. तो अब शेरा वाली माँ कर रही है, शेरा वाली माँ सबसे ऊपर है, सबसे बड़ी है. पर अगर शेरा वाली माँ सबसे ऊपर है, सबसे बड़ी है, तो जो साउथ अफ्रीका में बैठा हुआ एक बंदा है वो क्यों नहीं शेरा वाली माँ को मान रहा? या कोई गल्फ कंट्री में बैठा हुआ अरबी है तो वो क्यों नहीं शेरा वाली माँ को मान रहा? तो यानी कि कुछ तो ऐसा है ना कि जो हमारे बिलीफ्स के ऊपर भी कोई और है. वो मान रहा है अल्लाह को, मैं मान रही हूँ अपने गॉड, अपने भगवान को. तो यानी मैं भगवान या उसका अल्लाह, मैं उसके अल्लाह को नहीं मान रही हूँ और वो मेरे भगवान को नहीं मान रहा. तो यानी कि हम दोनों के जो चीज है ये आपस में अगर एक दूसरे के पैरेलल खड़ी हो गई है तो भैया पैरेलल जहाँ खड़े हो गए तो ये यहाँ हम लड़ रहे हैं कि तेरा मेरा बड़ा तेरा बड़ा. तो यानी कि ये सबसे बड़ा वाला नहीं है, ये पक्का है. सबसे बड़ा वाला मतलब कोई तो ऐसा है जो सबसे ऊपर टॉप पे बैठा हुआ है. तो वो कौन है? एंड देन व्हेन यू गेट टू नो कि वो ऐसा नहीं है कोई जिसको आकार है या कोई शेप है, पर वो ऐसा है जो सब में है. वो एक ऐसी शक्ति है जिसको हम परम शक्ति बोलते हैं, द सुपर पावर. एंड वो सब में है और वो हर चीज में है. ये भी नहीं कि वो कूड़े में भी है, वो मंदिर में भी है, वो सब्जी में भी है, वो सड़क पे बड़े पत्थर में भी है, वो मिट्टी में भी है, वो पेड़ में भी है, वो हवा में भी है, पानी में भी है, सब में है. क्यों? क्योंकि अब साइंटिफिकली समझ गए हो कि एनर्जी, ऊर्जा सब में होती है. हाँ समझ गए, हाँ ये है. अब नाउ ये है, अब आप समझ गए और ये एक ही है कोई जो हर चीज के अंदर विराजमान है.
Now once you get to ये कौन है, तो आपको समझ आनी शुरू होती है, and now you are hungry for more. And this power book gave me access to go forward, and then I found my own pathway, and I मुझे समझ आया कि वो एक ही है, कोई वो एक ओंकार है, और वो वन एंड ओनली है, और वही वो सब समझाना चाह रहे हैं, चाहे वो ओम नमः शिवाय के थ्रू समझाना चाह रहे हैं, चाहे एक ओंकार के थ्रू समझाना चाह रहे हैं, चाहे वो अल्लाह हूं की वजह से समझाना चाह रहा है। ये सारे जो टॉप वाले बंदे थे, ये सब के सब हमें समझाना चाह रहे थे कुछ, और हम उनको वो जो हमें समझाना चाह रहे हैं, हम वो ना समझे तो हम है नहीं, और हमने अपनी अपनी कोई और ही भाषा, अपने कर्म कांड, अपने कुछ रिचुअल्स बनाकर हम लोगों ने इन्हीं लोगों को टॉप पे बिठा दिया। ये लोग तो हमें बताना चाह रहे हैं कि वो टॉप पे कोई है जिसको मैं मिलाऊं, और आप भी मिल सकते हो। अगर मोहम्मद जी आए तो मोहम्मद जी कुड गेट कि वो अल्लाह मतलब कि वन, वो जो भी वो बताना चाह रहे हैं वो है। अगर नानक आए, उन्होंने कहा एक ओंकार, मतलब वो एक कोई है, पर आप भी मिल सकते हो उससे। वो कैसे? थ्रू दिस सीरीज। आपको समझना पड़ेगा वहां तक जाने का रास्ता। अगर शिवा आए तो शिवा ने कहा ओम नमः शिवाय, तो ओम कौन है? ओम का साउंड क्या है? नमः शिवाय। ये 5 एलिमेंट्स कौन है जिनसे पूरी कुदरत बनी है, जिससे आपका पूरा शरीर बना है? तो ये 5 एलिमेंट तो बाद में है, उससे पहले वो ओम भी है। ओम मीन्स आप जिस चीज को कभी सोचते हो कि वो मतलब कोई बना रहा है, कोई चला रहा है, कोई खत्म कर रहा है, नहीं, वो तीनों चीजें एक ही बंदा कोई कर रहा है। वो बंदा, आप बोलोगे बंदा मतलब कोई है, वो है पर वो नहीं है। मतलब कि आप ये नहीं कह सकते हो कि वो नहीं है पर वो है। अब ये क्या है? अब इसको समझते समझते जब आपके पास ये टाइम आएगा एक दिन, वंस यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड, देन दिस कहते हैं तब ये रास्ते अपने आप खुलने शुरू होते हैं आपकी आंखों के सामने। एंड देन आई गॉट इनटू इट, आई गिवन डीपर। बट आज जब मैं जहां पे भी हूँ, और जो भी स्पिरिचुअल रैंक के लिए कई बार हम बहुत शुक्रगुजार होते हैं कि शुक्र है प्रभु परमात्मा, आपने हमारे को समझ दी कि हम समझ पाए कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब चीजें तो हमने बनाई हैं। ये तो हमने, इंसानों ने अपने कंफर्ट, अपनी इजीनेस के लिए बनाई, और अच्छी बात है, क्यों बनाई है हमने? पर हमने भी इसलिए बनाई क्योंकि आप चाहते थे हम बनाए, क्योंकि आपको भी अच्छा लगता है। कभी हम, जैसे कभी कोई बंदा होता नहीं, जैसे कोई इंग्लिश का गाना गाए, हाँ, कोई फ्रेंच का गाना गाए, कोई पंजाबी में गाना गाए, तो म्यूजिक भी तो कितने कितने तरीके के होते हैं ना। कोई, कभी आप लौकी की सब्जी खाओ, कभी तोरी की सब्जी खाओ, कभी आप छोले चावल खाओ, कभी कड़ी चावल खाओ, टेस्ट कितने अलग अलग तरीके के होते हैं। उसी तरह से आप कभी गुलाब के फूल का मजा लो, कभी जैस्मिन का लो, कभी लोटस का लो, कभी, है ना, अलग अलग फूलों की बगिया बनी होती है। तो इसी तरह आप भी चाहते थे कि ये अलग अलग पंथ बने, ताकि हम अलग अलग तरह से आपको शुक्रगुजार हों, आपके गुणगान करें, आपके ग्रैटिट्यूड करें। कोई अल्लाह की अजान निकाले, अजान कितनी खूबसूरत लगती है सुबह सुबह जब वो इतने प्यार से आपका नाम लेते हैं। कहीं पे घंटियां बज रही हैं आपके नाम की, और आपको आपके कीर्तन हो रहे हैं, कहीं पे सुबह सुबह अरदासें हो रही हैं आपके नाम की, तो आपको ये अच्छा लगता है कि हम अलग अलग तरीकों से आपका गुणगान करें। तो ये तो उनकी मर्जी है ना परमात्मा की, उन्होंने पंथ चलाए इतने सारे। पर हम इन पंथों के थ्रू किसको याद कर रहे हैं? क्या परमात्मा को? नहीं। अगर हम आज शुक्रगुजार होना छोड़कर सिर्फ रोंडा के नाम जपने शुरू हो जाएं, तो ये तो रोंडा की गलती थोड़ी ना बेचारी की। रोंडा ने हमें रास्ता दिखाया है, पर रास्ता क्या दिखाया? उस शक्ति तक पहुंचने का रास्ता। शुक्रगुजार होके शक्ति तक पहुंचो। अगर नानक, आज हम सिख पंथ में, और हम सिर्फ बोले कि वाह धन नानक धन नानक धन नानक, हम नानक तक ही जाके रुक जाए, तो ये तो हमारी बेवकूफी है ना कि हम नानक जी को समझ ही नहीं पाए कि गुरु नानक क्या बताना चाह रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही मैसेज है, एक ओंकार, और वहां तक पहुंचने के लिए सचखंड कैसे पहुंचना है, 10वें द्वार अपना कैसे ओपन करोगे, आगे कैसे पहुंचोगे, साइंस सीखने के लिए पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा गया है। पर हम ग्रंथ पढ़े ही ना, सीखे ही ना, और बस नानक की फोटो लगा के नानक को पूछते रह जाए, तो जन्म ही खराब कर दिया हमने अपना। तो कैसे पहुंचना है उस शक्ति तक जिन्होंने नानक को भी बनाया है, मोहम्मद को भी बनाया है, शिवा को भी बनाया है, और इन सबके हाथों से लिखवाया भी है ग्रंथ। चाहे वो शिव पुराण लिखवाया है, चाहे वो बाइबल लिखवाई है, चाहे गुरु ग्रंथ साहब जी लिखवाया, कि पढ़ो, समझो, अपनी जिंदगी को सफल बनाते हुए, इस दुनियावी जिंदगी में अपना स्वर्ग प्राप्त करते हुए चलो ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब अपवर्ड फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। तो ये सब चीजें, in my experience, I could understand more deeply only after this book. जब मैंने इसको अपने तरीके से समझा और पढ़ा, और इतनी डीप बुक है, मतलब आई रियली विश कि सबको समझ आ पाए, क्योंकि बहुत डीप बुक है और बहुत ही कमाल की बुक है हर फील्ड के अंदर। तो उसी में से हम कुछ इसके जो पैसों के चैप्टर है, इसमें पैसों के बारे में भी बताया गया है, और बहुत ही इजी भाषा में और कमाल की भाषा में बताया गया है। उसके हम कुछ, बिकॉज इस बुक को अगर इस बुक का एक भी चैप्टर खुल गया ना, महीना लग जाएगा मेरा, क्योंकि इसकी तो एक एक लाइन के अंदर इतना डीप जाना होता है।
तो अभी हम उसके वो की नोट्स जरूर लेंगे, ताकि पैसों की दुनिया में आप पावर, जैसे देखिए मैग्नेट, एक मैग्नेट है, हाँ, आप मैग्नेट हो, आप शुक्रगुजारिता तो कर रहे हो, पर आपकी शुक्रगुजारिता के अंदर पावर आ जाए तो और मजा आ जाएगा ना, यस नो में भी, कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें शक्ति आ जाए। जैसे कि एक मैग्नेट है, उसको शक्ति मिल जाए तो उसका काम और ज्यादा पावरफुल हो सकता है ना। तो उसी तरह से ये जो पावर है वो आप जिस भी चीज में ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, उस ग्रेटिट्यूड को इस तरह से करो तो उसमें और पावर आ जाएगी। तो हम कुछ पावर पॉइंट्स पढ़ेंगे इस समय। ओके, तो पावर पॉइंट्स क्यों पढ़ने? बिकॉज आपने आज तक जो भी प्रैक्टिसेस करी है पिछली, उनमें अगर आप ये पॉइंट्स ऐड कर दोगे तो कमाल हो जाएगा। कमाल, कमाल मतलब कि करो पहले फिर देखना। मतलब मैं बता रही हूँ, ये तो ऐसी पावर है जो आपकी किसी भी रेल्म के अंदर, चाहे आपका रिलेशनशिप है, चाहे आपके पैसों की दुनिया है, चाहे आपके कई लोग स्पिरिचुअल रेल्म में भी जाना चाहते हैं। जब आपकी दुनियावी जरूरतें पूरी हो जाएंगी ना, मतलब आपका सब कुछ पूरा हो जाएगा, जैसे कि जो भी आप चाहते हो सब कुछ मिलना शुरू हो गया, अब उसके बाद आपको ना, मैं बताऊंगी, अभी नहीं आएगा, जब आपके रिश्ते विश्ते सेट हो जाएंगे, सेहत सूरत भी ठीक ठाक है, और पैसे पूसे भी, आपका पेट भर गया, बथेरे मिल गए आपकी जरूरत के हिसाब से, तो आपके अंदर से आवाज आएगा कि यार मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, यार मैं धरती पे पैदा क्यों हूँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। कभी आपको आया ऐसा क्वेश्चन? कभी आया, कभी सुनाई दिया कि यार मैं करने क्या आया हूँ इस धरती के ऊपर? कभी अंदर से आवाज आती है, यू नो, हम कई बार अनसुना कर देते हैं या हम इसके बारे में ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, पर ये अक्सर आवाज अंदर से आती रहती है कि ओ बेवकूफ, हम यहाँ करने के आए, तो तू कर क्या रहा है ये सब कुछ। अंदर बैठा हुआ कोई आवाज मारता है हमारे को अक्सर, हमें जगाने के लिए। एनीवेज, तो वो फिर आपको याद आएगा। और आप देखिए, पर्पस ऑफ लाइफ ऐसी चीज होती है, अगर आप इसको समझ जाओ और इसी के साथ करते करते आगे बढ़ो, तो आपको पैसे, शोहरत, नाम, ये मिलना ही मिलना है। जो भी आपका पर्पस ऑफ लाइफ है, मैं अपना बता सकती हूँ, मुझे पता है मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मुझे पता चल चुका है, क्योंकि मुझे नहीं पता था, परंतु आप अगर मैं बताऊं, याद इसके दो तरीके, या तो पर्पस ऑफ लाइफ मिल गया और अब उसके साथ खुशी 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 ग्रेटिट्यूड में आगे बढ़ते जाओ, या अभी जो भी कर रहे हो, उस समय जो भी कर रहे हो उसके अंदर ग्रेटिट्यूड और गुड फीलिंग्स को डाल दो। आप बर्तन धो रहे हो, आप रसोई में काम कर रहे हो, आप ऑफिस में जा रहे हो, आप हाउसवाइफ हो, आप बिजनेस करते हो, फैक्ट्री चलाते हो, जो भी कर रहे हो उसके अंदर ग्रेटिट्यूड डाल दो और गुड फीलिंग्स डाल दो, ये दो चीजें डाल दो। सूनर और लेटर यू विल बी ऑन द ट्रैक ऑफ योर पर्पस ऑफ लाइफ। आप अपने आप ऑन ट्रैक आ जाओगे, आपका पर्पस ऑफ लाइफ होगा, आपको खुद पता चल जाए। मुझे क्लियरली पता है व्हाई आई एम हियर ऑन दिस प्लैनेट, मैं इस अर्थ पे क्यों आई हूँ, और उसको करते करते आज मैं इस रेल्म में आई हूँ, और मुझे पता है मैंने लाइफ में पैसा, शोहरत, इज्जत, रिलेशनशिप, हेल्थ, जो मतलब छुट्टियां, फॉरेन हॉलीडेज, सब मिले मुझको। क्यों? क्योंकि जब आप पर्पस ऑफ लाइफ के साथ सिंक में होते हो, ये सब चीजें आपको कमाने के लिए स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं होती है, ये सब कुछ मिलता ही मिलता है उस सीरीज के अंदर, आप जो भी कर रहे हो। अब तो क्या करना है, क्या पता मुझे आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, तो सिर्फ आप जान सकते हो। ओके, अब बोलोगे कैसे? भैया आप खुशियों में रहना तो शुरू करो, आप खुशियों में और शुक्रगुजारिता में, और आपको पता चलेगा कुछ ही महीनों के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो उसको करने में आपको बहुत मजा आता है। और जिस चीज को करने में आपको बहुत मजा आता है ना, वो 100% आपके पर्पस ऑफ लाइफ के पैरेलली चल रही है, कुछ ना कुछ साथ ही चल रही है, आपके आसपास ही होता है आपका पर्पस ऑफ लाइफ। जैसे मेरा पर्पस ऑफ लाइफ मुझे भी नहीं पता था, मैं पर बचपन से ही, मतलब मुझे सुंदर दिखना या लोगों को सुंदर बनाना अच्छा लगता था, मतलब अच्छा, और इसको करने में मेरे को कोई पैसे दे ना दे, मुझे मजा आता था। जैसे कोई सुंदर बन रहा है तो उसको देखने में बड़ा मजा आता था। और फ्यूचर में जाते 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 आगे, आई स्टार्टेड माई करियर इनटू द वर्ल्ड ऑफ कॉस्मेटोलॉजी। हाँ, स्किन, मेकअप, ब्यूटी, हेयर। क्यों? क्योंकि मुझे सुंदर बनाने में मजा आता है, बहुत अच्छा। तो जब मैं क्लाइंट्स का मेकअप करती हूँ या हेयर कट करती हूँ, कुछ भी ऐसा करती हूँ जिससे कि वो सुंदर बन रहे हैं, आई लव इट, आई लव इट, आई लव डूइंग इट, एंड आई फील सो ग्रेटफुल कि किसी की शक्ल तुम कैसे चेंज कर सकते हो विद फ्यू साइंटिफिक कट्स या कलर के कॉम्बिनेशन से। मतलब कितना कमाल, मतलब उसकी शक्ल जो भी थी, हाँ, बाल इतने हल्के हल्के थे, परंतु आपने उसके डाउनवर्ड एंगल काटा और एकदम उसकी फ्लिक से उसका जो चेहरा है वो इतना जवान हो गया, या कलर कुछ डाला उसके फेस पे एकदम से ग्लो आ गया, या तुमने कुछ मेकअप से कुछ किया उसके फेस के ऊपर इतने ज्यादा अच्छी लुक्स आ गई, तो क्या हुआ, सुंदर बनाया। तो बड़ा मजा आया भैया। और जितनी बार भी करती थी, शुरू में तो पैसे कम मिलते थे, या बिल्कुल कॉलेज टाइम में तो पैसे मिलते ही नहीं, तो फ्रेंड्स के कर रहे हैं ना, फ्रेंड्स एंड कजन्स के, तब भी मजा आ रहा है। ऐसा काम जो आप कभी भी कर सकते हो, चाहे आपको पैसा मिले चाहे ना मिले, पर उसको करने में आपको मजा आ रहा है, ये आपका पैशन होता है।
और जो आपका पैशन होता है यही आपके पर्पस ऑफ लाइफ के आपके सबसे क्लोज, मतलब कई बार यही पैशन ही आपका पर्पस ऑफ लाइफ होता है कई बार। परंतु वो चीज को करने में आपको कभी थकावट नहीं हो रही, आपको हर समय करने में मजा। जैसे कल किसी ने बोला मुझे पेंटिंग्स करने में, तो मुझे पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा, कम दे रहा है कोई बात नहीं, पर मुझे पेंटिंग्स करने में मजा आता है जो मैं पेंटिंग। और लोग कहते हैं आपकी पेंटिंग तो मुंह से बोल रही है, तो यानी कहीं ना कहीं दैट पर्सन इज पैशनेट अबाउट पेंटिंग्स। अब जितना अपने आप को पेंटिंग्स में घुसा देंगी, जितना ज्यादा हो सके पेंटिंग्स के आसपास रहेंगी या करती रहेंगी या खुश रहेंगी उस बारे में, उतना ही अपने पर्पस ऑफ लाइफ को जल्दी जल्दी प्राप्त करना शुरू कर देंगी। किसी ने और ने बोला कि मैं मिर्चों का अचार बना रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोला, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है मिर्चों का अचार डालना, बनाना, अचार बनाना। और मैंने, वो लोगों ने भी बहुत अप्रिशिएट किया, लोगों ने खरीदना शुरू किया, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। अब तो मेरे को दुकानदार भी खरीदते हैं मुझसे। तो अगर इनको मिर्चों का अचार डालने में बहुत मजा आ रहा है एंड शी इज पैशनेट अबाउट अचार डालना, तो इनका पर्पस ऑफ लाइफ कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। कहाँ है वो इनको पता चलेगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, बिकॉज सी ये ना कमाल की चीज होती है, ये सिर्फ आप जान सकते हो कि कैसे होगा ये आगे बढ़ते बढ़ते। पर आप अपने आप को सुनो, आप किस किस चीज के साथ बहुत पैशनेट हो, क्या क्या करने में आपको मजा आ रहा है, आपको मजा आ रहा है, आप खुश हो, और जहाँ पे आप बहुत शुक्रगुजार भी हो। तो जब मैं अपने क्लाइंट के लिए शुक्रगुजार थी, अपने पैसे जो आ रहे थे शुक्रगुजार थी, शोहरत ऐसी भाई, मतलब कुछ मतलब सोचती थी, एक छोटा सा पार्लर दिल्ली के एक छोटे से घर में, हाँ, और एक वो भी फर्स्ट फ्लोर पे, और शोहरत ऐसी है कि दिल्ली क्या, मतलब बाहर वाले लोग भी जाते थे, द क्वीन ऑफ मेक ओवर जास्मिन मंजाल, मतलब ऐसी शोहरत, मतलब अखबारें क्या, न्यूज़पेपर क्या, चैनल्स क्या, मतलब हर कोई तुम्हें छाप रहा है। क्यों? क्योंकि तुम अपने पर्पस ऑफ लाइफ के साथ सिंक में उस समय, पैसे पूरे मतलब भर भर के आ रहे हैं, शोहरत पूरी भर भर के आ रही है, प्रॉपर्टीज मतलब जो चाहिए सब मिलेगा, हॉलीडेज मिलेगा, क्या चाहिए और बताओ क्या चाहिए, क्योंकि आप जो कर रहे हो ये आपका, जो भगवान ने आपको काम दिया है, जो आपका फिंगरप्रिंट है। अंडरस्टैंड, फिंगरप्रिंट हर इंसान का अलग अलग है, इसी तरह से पर्पस ऑफ लाइफ भी हर इंसान का अलग अलग है। पर हम अपना पर्पस ऑफ लाइफ करने या ढूंढने की बजाय कई बार और लोगों को निकल मारने शुरू कर देते हैं, इसलिए तो फंसे पड़े हैं सबके सब। एनीवेज, तो उसको फॉलो करते 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 देयर विल कम अ टाइम, जिन्होंने हीरो बुक पढ़ी हुई उनको सबको समझ आ गया होगा। हीरो बुक में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि फिर ऐसे होगा आपकी लाइफ में, फिर ऐसे होगा आपकी लाइफ में, फिर ऐसे होगा आपकी लाइफ में, एंड वन डे यू विल बी एट द टॉप ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, जो भी आपका फील्ड है। जैसे कि मेरा ब्यूटी का फील्ड था तो मैं इसके टॉप पे आ जाऊंगी। अगर आप गोलगप्पे बना रहे हो तो आप गोलगप्पे बनाने वाले फील्ड के टॉप पे आ जाओगे। अगर आप अचार बना रहे हो तो अचार बनाने वाले फील्ड के टॉप पे आ जाओगे आप। हीरो उसी को कहा जाता है ना कि अचार बनाने में तो ये बंदा हीरो है, ऐसा अचार तो और कोई बना ही नहीं सकता, इफ यू अंडरस्टैंड, ठीक, इसको हीरोशिप बोला जाता है। तो वन डे यू विल बी इन एक्सपीरियंस ऑफ हीरोशिप, यानी कि जो आप काम कर रहे हो आप उसके अंदर बहुत 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 बढ़िया हो। नाउ इट्स टाइम टू, जब आप उसको प्राप्त कर लोगे, जब भी प्राप्त करोगे, एक्सपीरियंस होता है वो, नाउ इट्स टाइम टू गेट डाउन। उस बुक में क्लियरली बताया गया है, गेट डाउन एंड कंट्रीब्यूट बैक टू द ब्रदर्स ऑफ द सेम मदरलैंड, मतलब कि उसी फील्ड के अंदर लोगों को कंट्रीब्यूट करो, ये तभी आप पर्पस ऑफ लाइफ को फुलफिल करोगे ना। तो पर्पस ऑफ लाइफ दो तरफ से चलेगा। पहला, मटेरियलिस्टिक दुनिया में चलेगा, इस दुनियावी दुनिया में आप शोहरत हासिल करोगे, ये करोगे वो करोगे, बहुत खुशी हासिल करोगे, टॉप पे पहुंचोगे। तो टॉप पे पहुंच लिए, हाँ, अब वहां बैठे मत रह जाना। तो ये लोग ये गलती कर देते हैं बहुत भयंकर, वहीं पर कुर्सी को चिपक के बैठ जाते हैं। वंस यू बीन देयर, डन दैट, यू हैव एंजॉयड, रेलिश्ड, यस, गेट डाउन। जब तक आप उतरोगे, इसको कहा जाता है पैशन को प्राप्त करते करते उस टॉप पे पहुंचना। और अब अपने पैशन को कंपैशन में कन्वर्ट करो, खुद करना होता है। पैशन को कंपैशन में लाओ, अब दुनिया के काम आओ, दुनिया के लिए दया भाव रखो, करुणा भाव रखो। कई लोगों को आपकी जरूरत है, उनके काम आओ, तो उनके काम आना शुरू होना होता है। इसके बाद जैसे आपने नोट किया होगा, जितने भी बड़े 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 बन जाते हैं सब लोग, अक्सर दान दक्षिणा या काम आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमिना है, ये होगा ही होगा। अगर आप हीरोशिप प्राप्त करोगे, अगर आप नीचे नहीं आओगे तो आप अहंकार में ही मारे चले जाओगे। तो नीचे आना जरूरी होता है, उतरो वहां से वापस नीचे। तो हर कोई नहीं उतरता ना। अगर आपने टॉप को प्राप्त कर लिया, आप नीचे उतरो वापस, सीढ़ियों के टॉप पे खड़े होकर वहीं पे जम के खड़े हो जाएंगे गधे। तो नीचे उतरो, नीचे उतरते उतरते देन यू गेट डिफरेंट रियलाइजेशन, एक अलग तरह का अनुभव होता है। जब आप वापस नीचे उतर रहे होते हो, लग रहा होता है कि आप खुद छोड़ रहे हो सब कुछ, जो चीज हम पकड़ते पकड़ते ऊपर चले थे, ये शोहरत, ये पैसा, ये जेवर, ये कपड़े, अब नीचे उतरते हुए लग रहा है कि कर तो लिया, हो तो गया, छोड़ दिया। इसको कहा जाता है यू स्टार्ट लिविंग योर अटैचमेंट्स, आप खुद छोड़ना शुरू करते हो। और जब आप खुद छोड़ते हो ना, वो आपको कोई कष्ट या दुख नहीं दे रही होती है,
आप खुद अपनी इच्छा से छोड़ रहे हो तो उन सब चीजों को, क्योंकि दे रहे होते हो ना, यू गिव इट अवे, उस समय दे रहे होते हो। अब ये सब कुछ बातें जो मैं बोल रही हूँ, ये कम से कम 4-5 महीने के एक एक टॉपिक के निचोड़ बता रही हूँ मैं आपको, ओके। तो अब आपने छोड़ा, वापस आए, कॉन्ट्रीब्यूट बैक टू द मदरलैंड, जो भी जिस भी फील्ड में आप उसमें कॉन्ट्रीब्यूट बैक करो। नाउ हियर स्टार्ट्स योर स्पिरिचुअल जर्नी, प्रॉपर स्पिरिचुअल जर्नी, जिसके अंदर जो आपने अपने मटेरियलिस्टिक जर्नी में सीखा हीरोशिप की, वही सेम डिट्टो फॉर्मूलाज यहाँ काम आएंगे, क्योंकि आप वहां सीख चुके हो और अब स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगी। पर अब जब स्पिरिचुअल जर्नी में शुरू होगे तो भी आपको अपना पर्पस ऑफ लाइफ साथ साथ ही रखना है, वो उसके बिना तो आगे रास्ता ही नहीं है ना। तो आपको, अगर मैं ब्यूटीफाइंग में थी फॉर एग्जाम्पल, तो पहले मैं लोगों को कहाँ ब्यूटीफाई कर रही थी? एक्सटर्नली। अब मैं लोगों को कहाँ ब्यूटीफाई कर रही हूँ? कैन यू अंडरस्टैंड? कहाँ ब्यूटीफाई कर रही हूँ मैं? क्या मैं आपके मेकअप कर रही हूँ? क्या मैं आपके हेयर स्टाइल कर रही हूँ? अब मैं क्या कर रही हूँ? अब भी मैं ब्यूटीफाई कर रही हूँ, पर मैं किसी मैं कुछ ना कुछ सुंदर ही बना रही होंगी। क्या क्या पता किसी के पैसों की दुनिया में कुछ सुंदरता लाने की कोशिश कर रही होंगी, किसी की सेहत में, किसी की जिंदगी में, है ना, कुछ ना कुछ मैं सुंदर ही बना रही हूँ। पर अब ये जो मेरा लेवल होगा ये इंटरनल हो जाएगा, होगा सेम। अगर सपोज कोई अचार बना रहा है तो हो सकता है वो, मुझे नहीं पता ना उसको क्या होगा, अचार बना रहा है तो शायद स्पाइस ऐड कर रहा है फॉर एग्जांपल, वो स्पाइस ऐड कर रहा है, तो पहले वो स्पाइसेस ऐड कर रहा है एक्सटर्नली, मे बी वो जब अंदर भी जाएगा तब भी वो लोगों की जिंदगी में कुछ स्पाइस मतलब कि कुछ स्पार्क ऐड कर रहा होगा वो बंदा। तो ये क्या होता है, ये ना मुझे भी नहीं पता, ये मैं अपना जानती हूँ, मैं किसी और का नहीं जान सकती। आपके पास खुद अपने आप इतना आईक्यू होगा उस टाइम पे कि आप अपना समझ पाओगे, ओके। तो ब्यूटीफाइंग सेम काम कर रही थी, पहले एक्सटर्नली कर रही थी, पर अब अपने आप को भी अंदर से सुंदर बना रही हूँ और अपने आप को साथ साथ अपने मदरलैंड, मतलब जो मेरे आसपास के लोग होते हैं उनको भी मैं कंट्रीब्यूट बैक कर रही हूँ। तो ये क्या है, ये दिस इज कॉल्ड द पर्पस ऑफ लाइफ सीरीज, ऐसे चलती है आगे आगे। तो तब भी खूब पैसा शोहरत नाम कमाया, अब भी खूब प्यार मोहब्बत, लोगों की बहुत दुआएं कमाई, तब भी दोनों में आप कमाई रहे होते हो और खुश होते हो हमेशा अपनी कमाई से, ओके। तो ऐसे करते करते आप आगे बढ़ोगे। तो ये पावर बुक जो है काफी हद तक आपको, देखिए, जिंदगी मिली है, वो काम जो जानवर भी कर सकता है, जानवर भी अपने बच्चे पाल लेता है, पता है आपको, जानवर भी सेक्स करता है, बच्चे पालता है, यही सब कुछ उसका काम होता है। तो अगर वही काम हम कर रहे हो तो फिर हमें मनुष्य की जिंदगी क्यों मिली है? रोजी रोटी तो जानवर और उसके बच्चे भी अपने संभाल लेते हैं। तो अगर आपको लगता है ये करने के लिए पैदा हुए हो तो थोड़ा सा अलर्ट होने का टाइम आ गया है। जरूर पैसा जरूर होना चाहिए, पर मैं क्या बता रही हूँ, अगर आप काम ही ऐसा कर रहे होगे जिस काम में आप बहुत शुक्रगुजार हो और खूब गुड फीलिंग के साथ काम कर रहे हो, आपको लोगों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, लोग आपके पीछे भागेंगे काम कराने के लिए। आपके पास, मतलब आप क्लाइंट्स, आप थक जाओगे, इतने क्लाइंट्स मिलेंगे आपको, इतने क्लाइंट्स मिलेंगे आपको, इतना काम मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा। मैं काउंट, मतलब मैं बता रही हूँ, काउंट करते करते मेरी उंगलियां ऐसे होती थी, थक जाती थी, फिर मैंने काउंट करना बंद कर दिया। उस जमाने में ना वो काउंटिंग मशीनें नहीं होती थी पैसे की, सारा काम कैश में होता था, टोटल कैश। तो पुराना मोदी से पहले का टाइम है, ठीक है, तो कैश नहीं होता था सारा काम उस टाइम पे। तो और तो फिर वो तो शुक्र करा भगवान का, ये इन्होंने वो कैश काउंटिंग मशीनें बना दी, चाइना से आई थी सबसे पहले ना ये कैश काउंटिंग मशीनें जो होती हैं, तब जाके मेरी जिंदगी को थोड़ी सहूलियत मिली, वरना तो मैं थक जाती थी। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, मैं कमाऊं भी और गिनूं भी। तो मैंने अपने हस्बैंड को और बच्चों को कामों पे लगाया हुआ था कि तुम गिना करो, मैं नहीं करूंगी गिनने वाले काम, तो थक जाती है मेरी उंगलियां। तो आप कहो कि हाँ ऐसे भी होता है, हाँ ऐसे भी होता है, इतना पैसा मिलता है, इतना पैसा मिलता है, आप कमा के, मतलब गिन गिन के थक जाते हो, आप संभाल के थक जाते हो, फिर आप कहते हो कि ओहो अब संभालो इसको, इन अ वे अब आगे बढ़ो लाइफ में, यही करने थोड़ी ना है फिर। तो आई मीन यू नो अंडरस्टैंड। अब इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं, द पावर एंड मनी। अगर आपको मनी की दुनिया में पावर लानी है तो कैसे, प्लीज समझिएगा। पावर्टी कंसिस्ट इन फीलिंग पुअर, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ग्रैटिट्यूड इज रिचेस, ग्रैटिट्यूड इज रिचेस, कंप्लेंट इज पुअर। अगर हमने पहले पढ़ा कंप्लेंट इज पॉवर्टी तो हमने समझा। परंतु पॉवर्टी कंसिस्ट इन फीलिंग पुअर, अगर आप अपने आप को फील ही पुअर करते हो तो फिर तो पूरी जिंदगी मतलब पॉवर्टी में ही रह जाओगे। फीलिंग, आप इस समय फीलिंग क्या कर रहे हो? अगर आप सेटिस्फाइड इंसान हो ना, आपके घर में सिर्फ, जैसे कल रोंडा ने भी शेयर किया कि उसके फ्लैट में सिर्फ एक कुर्सी थी और अपनी गोद में रख के कंप्यूटर पे काम करती थी, और सिर्फ 4 प्लेटें थी, 4 चम्मच थे, 4 चाकू थे, और वो सेट आता है ना पूरा नाइफ का और फोक्स का, तो बस वही था उसके पास। तब भी उसको बहुत खुशी थी कि मेरे पास ये जो है, थैंक यू फॉर दैट, मेरे पास 2 लाते हैं जिससे मैं चल सकती हूँ, मेरे घर के पास ही टैक्सी स्टैंड है, कभी जरूरत पड़े तो। अगर आप शुक्रगुजार रहोगे तो ही आगे बढ़ोगे ना। कई बार हमारी जिंदगी में कुछ नहीं होता, जैसे हम लोग गवर्नमेंट, मेरे मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट थे,
पुलिस में थे दोनों ना, तो बहुत लिमिटेड सैलरी होती है। हाँ, फिर 3 बच्चे थे, हम लोग तीनों को पालना वगैरह वगैरह। एक चॉइस तो ये है कि आप बोलो कि हाँ आपके पास इनफ नहीं है। दूसरी चॉइस ये होती थी हमारे पास इतना है, बहुत है, हमारे पास बहुत है। मतलब जैसे कभी कुछ होता भी है, फंक्शंस वगैरह भी होते थे, आप फ्रेंड्स के घर जाते थे, कुछ भी जाते थे, एक्सपीरियंस हमेशा यही होता था कि वी हैव इनफ, वी हैव इनफ। और मतलब आपके पास जैसे सपोज कपड़े हैं, अब लिमिटेड कपड़े थे, पर कपड़ों का पहनने का स्टाइल ही ऐसे, कोई अच्छी सी बेल्ट ले लिया, अच्छी सी कोई चलो स्लिप फुटवियर ले लिए, थोड़ा स्टाइलिशली पहन लिया, तो सिंपल कपड़े भी आपके अच्छे लगने लग जाते हैं। तो लोग भी पूछते थे, लोगों को लगता था बचपन में मैं बताती हूँ, बचपन में लोगों को लगता था कि बहुत अमीर है, सबको लगता था कि बहुत अमीर है, बड़े वो, जैसे कि स्कूल में हर रोज मैम को मैं छोटे छोटे बुकेस बना के गिफ्ट करती थी सुबह सुबह। क्यों? क्योंकि हमारे मोहल्ले में इतने फूल लगते थे, इतने फूल लगते थे, तो मैंने तो वैसे ही फूलों के पीछे पागल, तो सुबह सुबह जाके ना फूल तोड़ के ले आती थी। अब तो मैं नहीं तोड़ती, बचपन में पागल थी बहुत। तो ऐसे फिर घर में लाके ना उसके रबड़ लगा के छोटे छोटे बुकेस बना लेती थी। तो फिर मैं जाकर उन सब मैडम को मैडम गुड मॉर्निंग करके सबको ऐसे, मतलब अच्छा लगता था फ्लावर्स ऐसे अपने टीचर्स को गिफ्ट करना। अच्छी मैडम टीचर्स जो होते थे, सारे बच्चे सब पूछते थे कहाँ से लाते थे तो सुंदर फूल, इतने सुंदर फूल। मैंने दीदी हमारे घर में उगे हुए हैं। मेरे को तो पूरा मोहल्ला अपना घर ही लगता था ना तो मेरे को हमारे घर में उगे हुए हैं बहुत सारे, हमारे घर में। वो सब सोचते थे बड़ी अमीर है, इसके घर में बड़े फूल उगते हैं। ऐसे ही करते करते कोई बात हुई, कभी कुछ बात हुई, सबको पूरी जिंदगी ऐसा लगता था कि हम बड़े अमीर हैं। तो अच्छी बात है फील करने। तो सारे लड़के क्लास के क्या बोलते थे जब हम बड़े हो गए, कहती जिसकी भी शादी, मेरा नाम दीपिका था उस जमाने में, अब तो आश्विन हो गया, तो शादी के बाद आश्विन हो गया, पहले दीपिका था। सब बोलते थे दीपिका की शादी जिससे भी होगी ना, उसका तो 5 उंगलियां घी में होंगी और सिर्फ कढ़ाई में होगी ये मुझे सेंटेंस समझ नहीं आता था कि क्यों उस बेचारे का सिर्फ कढ़ाई में क्यों डालेंगे हम तो जिसकी शादी होगी मुझसे। पर ये सब बोलते थे ऐसे कि जिसकी भी से शादी होगी वो तो बड़ा किस्मत वाला होगा, क्योंकि हम बहुत अमीर हैं। तो एनीवेज, ये क्यों लोगों को ऐसी गलतफहमी या ऐसे विचार आते थे? क्यों? आपके पैसा है या नहीं है, ये आपकी पर्सनल फीलिंग है। और जो भी पैसा है, जितना भी है, आप उसको फील क्या कर रहे हो? फील में हमेशा ये करती थी कि वी हैव इनफ, आई हैव इनफ, आई हैव मोर देन इनफ, ऑलवेज मोर देन इनफ। उसी सिचुएशन में कोई बंदा ये भी कह सकता है हम तो कंगले हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास हम तो बहुत गरीब हैं, हम तो गवर्नमेंट ऐसे मतलब गरीबी वाले घर में रह रहे हैं। आप जितना पॉवर्टी को फील करोगे या अपनी फीलिंग्स में पॉवर्टी को लाओगे, आप उतना पॉवर्टी की तरफ बढ़ते चले जाओगे। और जितना आप अपने आप को फील करोगे आप राजा जी हो। मैं आई एम नॉट टेलिंग यू टू बी एरोगेंट, आई एम टेलिंग यू टू फील सेटिस्फाइड, फील ग्रेटिट्यूड एंड फील रिचेस, फील रिचेस। हम सोचते हैं कि अच्छा 5 स्टार में नहीं जा सकते, हम यहाँ नहीं जा सकते, महंगी दुकानों में नहीं जा सकते। मैं कह रही हूँ आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता, आप हर जगह जा सकते हो। पर आपका कॉन्फिडेंस क्या है, वो आपको अंदर से क्या बोल रहा है? आप गरीब हो या आप भी इस चीज के लिए हकदार हो? अगर आप उस चीज के लिए हकदार हो, you deserve it, you go there, you feel it. The moment you feel riches, the more you will attract money in your life. I remember, अच्छा चलो आप ज्यादा नहीं बताती, मतलब कि जैसे कि जब पहली बार फॉरेन में गई, मलेशिया गए थे हम, सबसे पहला हमारा ट्रिप मलेशिया का था, मेरा और मेरे हस्बैंड का। होगा 15 साल पहले की बात होगी, 15-16 साल, 20 साल हो गए मेरे ख्याल से। तो नहीं 20 तो नहीं, 18। तो ऐसे मतलब तब बच्चे बहुत छोटे थे दोनों। तो एनीवेज, तो मलेशिया गए। तो मलेशिया में वहाँ कुआलालंपुर में जहाँ पे ये ट्विन टावर्स है, वहां पे नीचे एक मॉल है। और उस मॉल में ना, जैसे यहाँ दिल्ली का एम्पोरियो समझ लो, एम्पोरियो जैसे है, तो वहां उस टाइप का एम्पोरियो जैसा मॉल है। उसके अंदर जब हम घुसे ना, तो वहां पे जैसे एक जीन्स देखी, इंडियन करेंसी के अंदर वो जीन्स 84,000 की जीन्स थी, 84,000 उस जमाने में। आज की बात नहीं कर रही मैं, उस जमाने में ऐसे मैंने नहीं पहली बार सुनी कि है कोई जीन्स 84,000 की भी हो सकती है। तो तब पता नहीं था ना, तब हम बिल्कुल नए नए अमीर बने थे मतलब नए नए पैसे आए थे हमारे पास, तो हमें पता ही नहीं था कि ऐसे भी होते हैं। कोई पर्स इतने लाखों का भी हो सकता है, ये जो एलवी गुची ये सब नाम हमें नहीं पता थे उस टाइम पर। तो मैंने कहा ऐसे भी, कैल्विन क्लेन को ऐसे पता नहीं कौन सी कंपनी थी, उसकी जीन्स 84,000 की, तो ऐसे टंगी हुई। मैंने कहा अच्छा, बाहर से देखा हमने शो विंडो में, फिर हम दूसरी दुकान के बाहर खड़े हो तो वहां पे भी ऐसे। मैंने कहा नो ना, ये तो बड़ा अजीब सा। और मॉल भी, सबसे बड़ी बात, इंडिया में तो मॉल आए नहीं थे उस जमाने में। पहला मॉल दिल्ली में शॉपर स्टॉप टाइप से अंसल प्लाजा कोई खुला था, फिर गुड़गांव में खुला था। तो दिल्ली में तो मॉल नाम की कोई चीज ही नहीं थी तब तक। तो ये करोल बाग, चांदनी चौक, ये दुकानें, ये मार्केटें थी, तो वो मॉल था प्रॉपर। तो एक तो मॉल में जाके तुम्हें वो 140 सीढ़ियां जो होती हैं, एक्सकेलेटर, हाँ, उन सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना, वही बड़ी नई चीज थी। सीढ़ियां चल रही हैं अपने आप, पहली बार देखी वैसी सीढ़ियां। और फिर वो मॉल देखा, खुशबू जो होती है मॉल की, तो ना मन में ऐसे आए, उन्होंने बड़ा महंगा सा मॉल लग रहा है ये, जो वो भी जगह, चलो यहाँ से वापस चलते हैं, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। फिर इन्होंने बोला अब आए हैं तो देख ले।
थोड़ी देर तो मैंने कहा चलो पहले कुछ खा लेते हैं, फिर बैठे कहीं पे कुछ खाया, खाने से थोड़ा दिमाग सेटल हुआ, कॉन्फिडेंस आया। फिर मैंने कहा नोना बस हम डर क्यों रहे, हमारे पास तो पैसे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ पैसे तो है। तो मैंने कहा फिर हम डर क्यों रहे ऐसे दुकानों के बाहर खड़े हो, तो मैं ऐसा लग रहा था मन में चोर है कि बहुत महंगी दुकान है पर हम क्यों देख रहे हैं इनको, हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते इनको। तो ऐसे था फीलिंग आ रहा। फिर मैंने कहा नहीं नोना, चलो कोई नहीं, हमने खरीदना तो नहीं है पर अंदर जाके देखे तो सही होता क्या है इन कपड़ों में, इतनी महंगे क्यों होते हैं कपड़े। तो फिर हम दोनों ने एक दूसरा कॉन्फिडेंस बनाया, थोड़ा सा हिम्मत दी एक दूसरे को। फिर हम बड़ा शांत से थोड़ी बॉडी लैंग्वेज ठीक करी हमने। फिर हम घुसे दुकानों के अंदर, फिर हमने देखा अच्छा इस दुकान में ये है, जैसे कि कार्टियर की क्या होती है, कार्टियर क्या होता है, उसकी घड़ियां क्या होती है, राडो की घड़ियां क्या होती हैं। हम हर दुकान पे गए, फिर हमने धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में पूछना भी शुरू किया, रेट पूछना शुरू किया, मॉडल पूछना शुरू किया। फिर मैंने कहा ना एक दिन हम भी लेंगे कार्टियर की घड़ी। तो कहते हैं हाँ, हम हंसने लग गए दोनों, अच्छा करेगी क्या कार्टियर को। मैंने कुछ नहीं, मतलब आज देखा है तो अच्छा लगा देखकर, इतनी महंगी दुकान है, इतनी महंगी महंगी चीजें। तो मैंने कहा पर ना अच्छा लगा देख के, है ना। तो उन्होंने कहा हाँ अच्छा तो लगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो। ऐसे हम फिर बातें करते करते खुशी खुशी निकल आए मॉल से बाहर। तो पर मेन बात क्या बताना चाह रही हूँ, आपके पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, पर अपने आप को रिचेस में रखने के लिए आपकी फीलिंग्स जरूरी होनी चाहिए। और शुरू शुरू में कई बार आपको हिम्मत मारनी पड़ेगी, कई बार एक्टिंग भी करनी पड़ सकती है, इट्स ओके। पर फीलिंग गुड अबाउट एवरीथिंग, आप दुनिया को देख कर बोलोगे कि अरे ये तो मैं खरीद नहीं सकती पर्स, अरे मैं तो ये ले नहीं सकती, ये तो मैं अफोर्ड नहीं करती, जितना आप ये सोचोगे उतना पॉवर्टी को अपनी लाइफ में लेके आओगे। जितना आप सोचोगे हाँ आई कैन टेक इट, अभी मुझे चाहिए नहीं है, हाँ मैं ले तो सकती हूँ पर मुझे अभी अभी फिलहाल मेरे को भी जरूरत नहीं है इसकी। अगर आप ये भी बोल रहे हो तो अपने आपको कम से कम आप पॉजिटिव तो रख रहे हो ना। यस नो मे बी, कैन यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझ पा रहे हो। आप अगर फीलिंग कर रहे हो पुअर की तो आप 100% गरीब बनोगे ही बनोगे। परंतु आप कुछ भी करके अपनी फीलिंग को पॉजिटिव रख रहे हो, ग्रैटिट्यूड में रख रहे हो, आप अपने आप को जो मर्जी बोलो, आपको लगेगा वो फेक है पर इट्स ओके। इवन पॉवर्टी भी फेक है, रिचेस भी फेक है, दोनों ही फेक है। परंतु आपको क्या चाहिए, आपको तो रिचेस चाहिए ना, तो फीलिंग्स को भी रिचेस में लेके आना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में इतनी हुई थी, लाइक मी एंड हम दोनों आज कभी बैठ के सोचते हैं ना, दोनों मैं और मेरे हस्बैंड, तो हमें बड़ी मतलब पुरानी पुरानी बातें याद आती हैं कि लाइक हम लोग obviously we both belong to a very medium middle class family and हम दोनों ने ही वो टाइम देखे हैं जब हम दोनों के पास बहुत लिमिटेड पैसा, लिमिटेड मैं देखो मैं कम नहीं बोलूंगी पर लिमिटेड को वही मान लो जो आप मानते हो, ठीक है। तो और उस सिचुएशन में आपको कैसी फीलिंग आती है, कितने आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग आती है, टाइट टाइट टाइट, है ना, बिल्कुल ऐसे लगता है कि भैया जिंदगी कितनी कसी हुई है और कितनी बंधी हुई है और कितनी ज्यादा दम घुटता है उस सिचुएशन के अंदर जब आप कुछ करना चाहते हो, लेना चाहते हो पर ले नहीं पा रहे हो। तो ये सिचुएशन सबकी जिंदगी में कभी ना कभी होती है, यस नो में भी भाई आ सकती है ना, है ना। कोई कभी आज हो सकता है, कोई पिछला रहा हो, या यू नो यू कांट से कि कभी ने आपने फील नहीं करी है सिचुएशन। तो चाहे वो छोटे अमाउंट के लिए हो चाहे बड़े अमाउंट के लिए हो, परंतु उस सिचुएशन को फील करते हुए भी आपने अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखा और आगे बढ़ते गए, अपने आप को होपफुलनेस में रखा, ऑप्टिमिज्म में रखा। दैट्स द ओनली रीजन यू आर राइट नाउ अमीर। जितने भी लोग अमीरी में आ पाए वो इसलिए क्योंकि उन्होंने उस सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव रखा था। और जितने लोग उस सिचुएशन में गरीबी के मारे गरीबी की लड़ाई करते हैं, आपस में दूसरे को ताने मारते हैं, एक दूसरे लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या तुम ये हो, तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये हो गया, तुमने ये कर दिया, जितना भी आप उस गरीबी को एनर्जी दोगे वो गरीबी बढ़ जाएगी और आप उस दलदल में फंस जाओगे। तो भाई मर्जी आपकी, आपने क्या करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ से पढ़ा, पढ़ते पढ़ते सेकंड मैं इसमें सिर्फ हाइलाइट्स पढ़ूंगी क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है, कम से कम 20 दिन का चैप्टर, अकेला एक चैप्टर 20 दिन का है। तो व्हेन यू रियलाइज देयर इज नथिंग लैकिंग, द होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू यू। जब आपको ये फीलिंग आ जाए कि आपके पास कोई भी कमी, दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है, द होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू यू, दुनिया में हर चीज आपकी हो जाएगी उस दिन। क्यों? क्योंकि आप खुद की सोच को रिचेज में ले आए। कमी के अंदर रहोगे तो कमियां अट्रैक्ट करोगे, रिचेस में रहोगे तो रिचेस अट्रैक्ट करोगे। ये रूल है इस दुनिया में। मतलब आई रिमेम्बर, अभी जैसे मैं मलेशिया बोल रही हूँ, नेक्स्ट ट्रिप हमारा सिंगापुर का था। तो सिंगापुर जब हम गए तो वहां पे सेंटोसा, वो एक फिक्स पैकेज होता है ना, पैकेज में ले जाते हैं वो लोग। उन दिनों जमाने में पैकेज, शुरू में पैकेज ही चले थे सबके। फिर हम सिंगापुर गए, अगले साल जब भी गए होंगे तो वहां पे वो सेंटोसा घुमाने ले गए, ठीक है। वैसे वो ना घुमाते हैं, तो गाइडेड ट्रिप होता है। तो वहां पे ना वैसे हमने देखा बीच के किनारे, मतलब जब वो दिखा रहे थे सबको, तो एक बहुत बड़ा होटल था, शांग्रीला रासा शांग्रीला या शांग्रीला रासा, कुछ ऐसा नाम था। तो बहुत बड़ा होटल, ह्यूज, और मतलब बड़ा सुंदर सा होटल दिख रहा है। हमें उन दिनों में पैकेज वाले तो छोटे छोटे होटलों में ठहराते थे ना, तो हमने देखा और हमने सेंटोसा देखा। सेंटोसा भी बड़ा सुंदर, उस जमाने में बड़ा अच्छा था। तो
मन में आया कि यार एक दिन ना खाली सेंटोसा आएंगे, है ना, सेंटोसा और ये स्टार क्रूज करेंगे और ना इस वाले होटल में रहेंगे, कितना सुंदर है ना ये। तो हमने थोड़ा झलक वलक ले ली तो बड़ी सुंदर। अच्छा, उस जमाने में ये नहीं होता था इंटरनेट वगैरह कि आप एमएमटी या होटलों को देख लो, तो वो पुरानी बातें हो गई ना, 15-20 साल पुरानी बातें हैं। तो जो वो दिखा देता था हमारे को गाइड, तो वही दिखता था हमारे को, जो पैम्फलेट वगैरह होते थे। तो उस टाइप की चीजें मैं बता क्या रही हूँ, अगर आप देखोगे अरे हमें तो इतना बेकार छोटे से होटल में ठहराया, यहाँ पर तो कितने बड़े बड़े होटल है, अगर आप ऐसी बातें बोलोगे तो भाई गए तुम, लैकिंग में गए। पर व्हेन यू रियलाइज देयर इज नथिंग लैकिंग, कुछ भी लैकिंग नहीं दुनिया में, हर चीज आप डिजर्व करते हो, हर चीज आप प्राप्त कर सकते हो, द होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू यू। तो मतलब मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उस होटल में हम 2 बार रोए उसके बाद, फिर हमने कहा बस बहुत हो गया मतलब क्योंकि एक बार बच्चों को लेके गए तो बच्चों को बड़ा पसंद आया शांग्रीला, मतलब अच्छा है, होटल भी अच्छा है और स्विमिंग पूल बहुत बड़ा है और ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है उसका। तो और बच्चे भी मतलब सेंटोसा जाते हैं तो वो ये, फिर हार्ड रॉक खुल गया वहां पे, अगली बार गए तो चलो शांग्रीला और हार्ड रॉक। तो मतलब बताना क्या चाह रही हूँ, दुनिया में कोई भी चीज अगर आप बोलोगे तो वो आपकी हो सकती है, फिर अगर बोलोगे फील करोगे उस चीज को तो ठीक है। लव इज टेकिंग पावर, मतलब चिपक जाओ, मतलब कि देयर इज एन एटर्नल एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल। क्या है वो? इनहेरेंट इन ऑल थिंग्स, सब चीजों में एक चीज, एक फॉर्मूला, एक रूल जो चलता है हर जगह पे, वो क्या है? इन एवरी सिस्टम ऑफ फिलोसफी, इन एवरी रिलीजन, इन एवरी साइंस, जो सब जगह बताई गई है, देयर इज नो गेटिंग अवे फ्रॉम द लॉ ऑफ लव। लॉ ऑफ लव मतलब कि आप इस रूल को बाईपास कर ही नहीं सकते हो। इसको किसको रूल, देखिए लव इज फीलिंग, अगर आप समझो, और लॉ ऑफ लव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ फीलिंग जो है वो हर जगह चल रहा है। अब आप क्या फीलिंग कर रहे हो, जो आप फीलिंग करोगे वो चीज आपको चिपक जाएगी। ऊपर क्या है देखो, लव। अब आपको गरीबी से प्यार है तो हम क्या कर सकते हैं, आपको गरीबी चिपकेगी, गरीबी कोई सोच रहे हो, गरीबी कोई बोल रहे हो, गरीबी कोई जो भी कर रहे हो गरीबी को कर रहे हो। भाई जिस चीज से इंसान को प्यार होता है वो उसी बारे में तो बातें करेगा, यस नो मे बी। आपको ये गलत फहमी है कि आपको, अगर मेरे को किस चीज से नफरत है तो मैं, जैसे कि सपोज मुझे गोबर पसंद नहीं है, मुझे गोबर अच्छी नहीं लगती, फॉर एग्जांपल कह रही हूँ, मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं उससे तो मतलब अगर मुझे गोबर पसंद नहीं है तो मैं क्या गोबर के पास बैठूंगी? मैं गोबर के पास बैठ के बातें करूंगी? मैं गोबर को सूंघूंगी? मैं गोबर के साथ क्यों होंगी अगर मुझे गोबर पसंद नहीं है तो अगर आप आज, और हाँ, किसी को गोबर पसंद है तो गोबर के पास ही बैठेगा। आप ये समझिए, आपको लग रहा है कि आप टेररिज्म के बारे में बात कर रहे हो पर आपको टेररिज्म पसंद नहीं है, पर अगर आप टेररिज्म के बारे में बातें कर रहे हो तो प्लीज 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 अपने अपने अंतर मन में, अपने डीप साइंस में जाकर चेक करिएगा, कहीं ना कहीं आप टेररिज्म के साथ हो। वरना जो चीज आपको पसंद ही नहीं है, जिसके बारे में आप फेवर ही नहीं हो, जिसके बारे में आपके मन में कोई गुड फीलिंग ही नहीं है, आप उसके बारे में बात क्यों कर रहे हो? टाइम क्यों दे रहे हो? एनर्जी क्यों दे रहे हो? क्यों? क्योंकि ध्यान से पढ़िएगा, लव इज स्टिकिंग पावर। जिस चीज को आप अपना टाइम दे रहे हो, सोच दे रहे हो, अपनी एनर्जी दे रहे हो, ये यूनिवर्स को 100% यही डायरेक्शन मिलेगी कि इसको ये चीज पसंद है, और वही वो आपको चिपकाएगा। तो आज के बाद ध्यान रखिए, कैन यू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला? अगर आप गरीबी के बारे में सोच रहे हो तो वो आपको गरीबी चिपकाएगा, अगर आप अमीरी के बारे में सोच रहे हो तो आपको अमीरी चिपकाएगा। अब आपको क्या चाहिए? जिस चीज के बारे में गुड फीलिंग्स देने शुरू करोगे, फीलिंग्स देनी शुरू करोगे, अपने आप वो चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी। और मैं ये बता रही हूँ, पैसा कई बार लोगों के पास आता है फिर चला जाता है, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्टिकिंग पावर नहीं है। पैसा आया, जैसे आपने आज ग्रेटिट्यूड किया, पैसा आया, ठीक है, आया। अब आप उसके बाद घबरा रहे हो, कहीं पैसा चोरी तो नहीं हो जाएगा, कहीं कोई ले तो नहीं जाएगा, कहीं मेरा पैसा गुम तो नहीं जाएगा, कहीं कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा बिजनेस में। अब आप क्या कर रहे हो? ये गुड फीलिंग है, बैड फीलिंग है? एवरीवन। अब अगर आपके पास पैसा है पर उसके बाद आप पैसे के बारे में चिंता कर रहे हो, पैसे की लड़ाई कर रहे हो, अपने भाई से लड़ाई कर रहे हो, अपने पापा से लड़ाई कर रहे हो पैसे के लिए, या पैसे के लिए गाली गलौज कर रहे हो, या अपनी बीवी को या पति को छोटा बना रहे हो, या कुछ भी डीमीन बोल रहे हो किसी को, पैसे के लिए कुछ भी नेगेटिव बात कर रहे हो किसी से भी, तो अभी आप नेगेटिव बात कर रहे हो तो आप पैसे को अपने पास चिपका नहीं पाओगे। आपके पास पैसा अक्सर आपको छोड़ के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि लव इज द स्टिकिंग पावर। अगर आपको अपने पास, जब हमने शुरू में सेशन शुरू किया था, यू रिमेंबर, हमने कहा था कई लोगों के पास तो पैसा आता ही नहीं है, ठीक है, तो उन लोगों को हमने पिछला सारा सिखाया पैसा मंगाना कैसे अपनी तरफ। अब पैसा कई लोगों के पास टिकता ही नहीं है, आता तो है पर टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी स्टिकिंग पावर बहुत वीक है।
तो स्टिकिंग पावर को कैसे अपने स्ट्रॉन्ग करना है कि उस पैसे को जो आपकी जिंदगी में आया है इसको हर समय शुक्रगुजार रहना है, इसके बारे में जो भी बोलना है सिर्फ पॉजिटिव बोलना है, सोचना पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि और बढ़ रहा है। वाओ, जैसे कई लोग होता है पैसा आया, हाय एक खर्च ना हो जाए, अभी आया है ना तो संभाल के रख। अच्छा अभी तो कोई पता नहीं, पैसा नहीं टिकता किसी के पास। बड़ा ऐसी माँ बाप घर के लोग कई बार नेगेटिव बातें बोल रहे हैं, डराने वाली बातें बोल रहे हैं, फिर क्या होगा? ये पूरी जिंदगी बेचारे उसी उसी लेवल, इनका जो कैलिबर होता है वो ऐसा होता है कि ये 100 का करोड़ बना सकते हैं, पर इन घरों के ऐसे हालात की वजह से ना ये 100 का 1000 पे अटके रह जाते हैं। इससे बड़ी सोच ही नहीं है। घर वाले जो है वो सबके सब माहौल ही ऐसा होता है कि घर के अंदर डर का माहौल है पैसों के बारे में। पैसे नहीं है इसका डर है, अलग बात है, पर पैसे आ गए तो ये होंगे नहीं होंगे, टिकेंगे नहीं टिकेंगे, कोई ले ना जाए, कोई खर्च ना हो जाए, इसका डर है। ये लो अब ये फिर से मुसीबत। पर आप किसी भी नेगेटिव फीलिंग में हो तो पैसा नहीं टिकेगा, मैं पहले ही बता रही हूँ। और सबसे अच्छी फीलिंग, जो सबसे इजी फीलिंग होती है वो होती है शुक्रगुजार होना। शुक्रगुजार तो आप हो ही सकते हो ना हर सिचुएशन के अंदर, कि शुक्र है भगवान आपने मुझे इतना पैसा दिया, वाओ मैं आई एम वेरी लकी, आपने मेरे को इतनी अच्छी डील कराई, इतना बड़ा प्रॉफिट करवाया, थैंक यू भगवान में पैसा देने के लिए। आप जितनी बार बोलोगे वो पैसा आपके पास टिका रहेगा। ओके, ये समझिए वो टिका रहेगा जब तक आप शुक्रगुजार हो। अब ये होता है जो हमारा थर्ड पॉइंट था कि पैसे को हम मल्टीप्लाई कैसे करें, जिसको कहा जाता है कि पैसे में बरकत आ गई। तो उसी पैसे को जब हम सोचते हैं वाओ भगवान आपने मुझे इतना पैसा दिया, इस पैसे के बढ़ने के लिए शुक्रिया, मेरे को ऐसी और डील्स देने के लिए शुक्रिया, क्योंकि आप पिछलों के लिए सेटिस्फाइड हो, शुक्रगुजार हो, आगे आने वालों के लिए भी आप अक्सर शुक्रगुजारी रहते हो। तो हमने जो पास्ट में किया नहीं था, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सिमिलरली पैसे को अपने पास मंगवाना, उससे उसको रोकना और उसको बढ़ाना, ये 3 एक प्रोसेसेस होती हैं जो आपको अपने लिए हर समय करनी चाहिए। ओके, एंड लव इज द स्टिकिंग पावर, लव मीन्स गुड फीलिंग, अगेन आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तो एक ये भी मैं सिर्फ यहाँ पर शॉर्ट्स में ले ली। ये आभा मंडल आ गया, मतलब जो बॉडी के चारों तरफ ऑरा बन जाता है। अगर आप बहुत खुश देखिए, ये ह्यूमन है, ह्यूमन का ये देखिए क्या, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप बहुत पॉजिटिव और ग्रेटफुल रहोगे तो पैसा आप चारों तरफ से, पैसा आपका जो सिस्टम है वो चारों तरफ से पैसे को अट्रैक्ट कर रहा है। देखिए नोट उड़ते हुए इसकी तरफ आ रहे हैं हर तरफ से। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इसके जो बॉडी का ऑरा है वो मैग्नेटिक है और मैग्नेटिकली पैसे को अट्रैक्ट कर रहा है चारों तरफ से। आप कुछ भी काम करोगे, कहीं पे भी जाओगे, पैसा आपकी तरफ भागेगा ही भागेगा, आएगा ही आएगा आपकी तरफ। क्यों? क्योंकि आपके ऑरा के अंदर लव एंड ग्रेटिट्यूड है टुवर्ड्स मनी। ओके, लेट आवर लाइफ बी गुड एंड द टाइम्स आर गुड। वी मेक आवर टाइम्स सच एज वी आर, सच आर द टाइम्स। वाह, ये तो कुछ ज्यादा ही डीप हो गया जी। तो हाँ, तो क्या कह रहे हैं, अपनी लेट अवर लाइफ बी गुड एंड द टाइम्स आर गुड। अगर आप इस समय अपनी जिंदगी को गुड मतलब कि अच्छा फील करते हो, अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए आप झोंपड़ी में रह रहे हो, आपके पास 2 साड़ी है, 2 थाली है, 2 रोटी है, तो अभी आप कह रहे हो वाह प्रभु शुक्र है तेरा 2 रोटी देने के लिए। अगर आप ये बोल रहे हो एंड द टाइम्स आर गुड, तो आपका अच्छा टाइम आएगा ही आएगा। अच्छा टाइम जिसको भी चाहिए उसको पहले अपनी फीलिंग्स को ग्रेटफुल और गुडनेस में लाना पड़ेगा। वी मेक आवर टाइम, हम अपना समय खुद ही बना रहे होते हैं, हम अपना समय खराब भी खुद कर रहे हैं और उसको गुड भी खुद कर रहे हैं। सच एज वी आर सच आर द टाइम्स, जैसे हम होते हैं वैसा ही वक्त होता है। अगर इस समय मैं नेगेटिव हूं तो वक्त भी नेगेटिव हो जाएगा, मैं इस समय पॉजिटिव हूं तो वक्त भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपकी चॉइस है, आपने गुड होना है इस समय, मतलब गुड फीलिंग्स में रहना है या बैड फीलिंग्स में रहना है, चॉइस आपकी है। ठीक है जी। तो अब कई बार लोग बोलते हैं पर हम फीलिंग्स को चेंज कैसे करें अपने ही, तो वो मैंने आपको सिखाई दिया ऑलरेडी, एफर्मेशंस, मिरर वर्क, है ना, और अबंडेंस पोजेस बार बार करो। यू आर रिवॉर्डेड नॉट अकॉर्डिंग टू योर वर्क और योर टाइम बट अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ योर लव। कई बार लोगों को लगता है मैं ये बिजनेस करूंगा तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि साथ वाले दुकान पर तो बड़ा रश है, आपकी दुकान पर रश नहीं है, जबकि दोनों का माल सेम है। कभी देखा आपने ऐसे होता हुआ? कभी देखा है किसी ने? आपके और आपके फ्रेंड ने सेम एमबीए का कोर्स किया था, दोनों ने सेम ग्रेजुएशन, सेम एमबीए, सेम स्कूल, पर वो इस समय लाखों में कमा रहा है, आप हजारों में कमा रहे हो। तो क्या समझिए ये फर्क क्यों होता है? यू आर रिवॉर्डेड नॉट अकॉर्डिंग टू योर वर्क। ये जो यूनिवर्स है ये आपको इसलिए नहीं कि आपका काम कैसा है या आप कितना टाइम दे रहे हो। कई लोग ऐसे होते हैं दुकान खोलते हैं, सुबह 6 बजे दुकान खोलते हैं, रात को 11 बजे तक खोली रखते हैं,
पूरा दिन टाइम, मतलब अपने आप को बिल्कुल क्या बोलूं, मतलब कैसी क्या भट्टी में झोंका हुआ उन्होंने, काम की भट्टी कहते हैं उसको ना, हट्टी नहीं कहते उसको, भट्टी कहते हैं। झोंका होता है काम के अंदर कि हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, नहीं जी नहीं। पूरा दिन काम करके गधा जुदाई करके भी उनको उतने पैसे नहीं मिलते जो दूसरा बंदा 2 घंटे में कमा के ले जाए। क्यों नहीं मिलता? यू आर रिवॉर्डेड नॉट अकॉर्डिंग टू योर वर्क, नॉट अकॉर्डिंग टू योर टाइम। फिर क्या है पैरामीटर, क्या है मतलब क्या है इसका, क्या पैरामीटर या इसका कारण क्या है, क्या फिर क्या है दुनिया का, मतलब यूनिवर्स का मापदंड क्या है, किसको ज्यादा पैसे मिलेंगे किसको कम मिलेंगे, मापदंड क्या है उसका? अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ योर लव। अब ना व्हाट इज मेजर ऑफ योर लव? नंबर 1 लव क्या है? लव मतलब खुश रहना, गुड फीलिंग रहना, ध्यान से समझिएगा। तो मेजर क्या है? मेजर मतलब किसी चीज का मापदंड, अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ योर लव। अब आप किस काम को करते हुए कितना खुश हो रहे हो, आपने उसको जितना भी टाइम दिया, पर उस टाइम में आप बहुत पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही मतलब समझो कि बहुत ही खुशी और ग्रेटिट्यूड के साथ आपने वो काम किया या उसको टाइम दिया। आप अब एक पति पत्नी है, हाँ, आप कहने के लिए पत्नी कहे मैंने अपनी जिंदगी के 13 साल तुझको दिए, 13 साल तुझको दिए, तो क्या मतलब, इसका क्या मतलब पति तेरा गुलाम बन जाए? वही एक दूसरी लड़की आई है, शादी की है उसने, उसकी शादी को भी 13 दिन भी नहीं हुए, 2 महीने नहीं हुए, 2 साल नहीं हुए, पर दोनों आपस में बड़े प्यार से हैं, बहुत इज्जत से हैं दोनों। इससे थोड़ी ना कि तूने 13 साल दिए या तूने 23 साल दिए, 40 साल दिए शादी को, इसलिए तेरे को ज्यादा प्यार मिलना चाहिए, या तू ज्यादा काम करती है घर का तो ज्यादा प्यार मिलना चाहिए। नहीं, तू सारा दिन घर में बैठ के हर समय नुक्ताचीनी करे, चिक 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 करे, कंप्लेंट्स करे, हर समय हर चीज के अंदर जैसे पावर, यही कंप्लेंट करना या नुक्ताचीनी करना, अनग्रेटफुल होना, तो तू जितना मर्जी टाइम दे दे, जितना मर्जी उसको काम कर ले, कुछ फर्क नहीं, तू दिस इज यू विल नॉट बी रिवॉर्डेड। पर एक दूसरी बंदी आई है, हाँ, और वो हर समय हर चीज के अंदर, चाहे पति ने कुछ ना भी लाके दे, शुक्र है, मतलब थैंक यू वेरी मच, आपका इतना प्यारा घर है, इतना प्यारा परिवार है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे आप जैसा पति मिला, मुझे आप जैसे प्यारे मम्मी पापा मिले, आपके मम्मी पापा ने तो मुझे इतना प्यार दिया, जो मेरी मम्मी, मैं अपने मम्मी पापा से भी कभी सोचूं तो उससे भी ज्यादा प्यार दिया। वाह, मतलब मैं तो खुशकिस्मत हूँ, मेरे पास पहले मम्मा पापा थे, अब मेरे पास 2 मम्मी पापा हो गए। आई एम सो लकी, आई एम सो फॉर्चुनेट। हर समय हर घर की हर चीज के अंदर दीदी कितनी प्यारी है, हमारे भैया जी कितने अच्छे हैं, भाभी कितनी अच्छी, हर चीज के अंदर शुक्रगुजार औरत, हर चीज के अंदर पॉजिटिव औरत। अब सोचो एक आदमी है, हाँ, उसकी बीवी जो वो करता है नहीं करता, लाता है नहीं लाता, घुमाता है घूमने घुमाता, पर वो हर चीज में उसको अप्रिशिएट कर रही है अपने हस्बैंड को। आपको क्या लगता है, चाहे इसकी शादी को भी 1 साल हुआ हो, दूसरी की शादी को 40 साल हुए हैं, किसको ज्यादा रिवॉर्ड मिले? रिवॉर्ड मतलब किसकी जिंदगी में ज्यादा खुशियां होंगी? क्या लगता है आपको? शुक्रगुजार औरत की जिंदगी में ज्यादा खुशियां होंगी, या जो अनग्रेटफुल है, कंप्लेनिंग है, उसकी जिंदगी में ज्यादा खुशियां होंगी? आपको क्या लगता है? ये ना टाइम या उससे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि आपको समझना पड़ेगा कि मतलब जो बंदा ग्रेटफुल है, जो गुड फीलिंग्स में रहता है, यूनिवर्स विल बी रिवॉर्डिंग यू अकॉर्डिंग टू योर मेजर ऑफ योर लव। भाई मेजर ऑफ योर लव बहुत डीप है, इसमें तो कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे और डीप में जाने में, तो अभी हम इतने पे इसको रोक रहे हैं, ठीक है जी। तो ओके, सीज एवरी, अब ये प्ले मतलब ये अलग गेम है। तो कैप्चर द फीलिंग एसोसिएटेड विद योर रियलाइज्ड विश बाय अज्यूमिंग द फीलिंग दैट वुड बी योर्स, were you already in possession of the thing you desire, and your wish will objectify itself. Objectify यानी वो चीज रियल में आ जाएगी, वो चीज मतलब ऑब्जेक्टिफाई होता है उस चीज के रियलिटी, अपने आप को मास और वॉल्यूम में लेके आना। मास और वॉल्यूम कैसे कहते हैं? जिस चीज का कोई मैटर है, मासेस है, वॉल्यूम है, मतलब जिसका आकार प्रकार बन जाता है। ये क्या है? ये हमारी ऑन्टोलॉजी का सबसे बड़ा फील्ड होता है। आई एम एन ऑन्टोलॉजिस्ट। आप बोलोगे ये क्या होता है? ये इंडिया में बहुत कम पाए जाते हैं। जो पाए जाते हैं वो करोड़ों में मतलब करोड़ों में कमा रहे होते हैं इस टाइम पर, मतलब वो आप लोगों से किसी से बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने सेट क्लाइंट्स के साथ बातें करते हैं, क्योंकि उनको पता है उनके पास जो है वो इंडिया में कईयों के पास नॉलेज भी नहीं, उनको पता ही नहीं ऑन्टोलॉजिस्ट होता क्या है। तो एनीवेज, तो आई एम सर्टिफाइड वेरी 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 हाई, मतलब आई थिंक जो वो वाला काम कर रहे हैं उनसे काफी, मैं क्या अपनी तारीफ खुद क्यों करनी। एनीवेज, ऑन्टोलॉजी के फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा ये पाया जाता है क्या? देयर इज अ टर्म, देयर इज अ डिस्टिंक्शन कॉल्ड ऑब्जेक्टिफिकेशन। यानी कि क्या? यानी कि हर चीज जो आप इस यूनिवर्स ब्रह्मांड के अंदर आप समझे, हर चीज है, पर वो आप तक क्यों नहीं आ पा रही है? उसके लिए एक डिस्टिंक्शन होती है, उसको हम कहा जाते हैं, जिसको हम कहते थे पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी, यानी कि पॉसिबिलिटी एंड रियलिटी। अगर आप समझे वर्ड्स के अंदर, तो पोटेंशियलिटी क्या होता है कि, और एक्चुअलिटी
हर चीज एक पोटेंशियल चीज है। पोटेंशियल मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। पोटेंशियल तो है पर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। जैसे कि पॉसिबिलिटी है तो संभावना है, वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो ये क्या है, वो हो क्यों सकती है ये भी आप पे डिपेंड करेगा, और अगर नहीं हुई तो भी आप पे डिपेंड कर रहा है। तो ये आपके बीइंग के अंदर चल क्या रहा है। आप हर चीज को यथार्थ में तब्दील कर सकते हो, हर चीज को। जो लोग इस पावर को समझ पाते हैं ना, वो लोग वो हो जाते हैं जो इच्छाधारी वरदान भी दे पाते हैं। जैसे किसी ने बोला ये, और टक से वो निकाल के दे देते हैं। वो हर चीज को यूनिवर्स के पोटेंशियल डोमेन में से रियलिटी के डोमेन में 1 सेकंड में ले आते हैं। ये पावर उनको कैसे मिलती है? पावर है भाई, जितनी बढ़ाओगे उतनी बढ़िया है। कैप्चर द फीलिंग एसोसिएटेड विद योर रियलाइज्ड विश बाय अज्यूमिंग द फीलिंग दैट वुड बी योर्स वर यू ऑलरेडी इन पोजीशन ऑफ द थिंग यू डिजायर। अगर वो चीज आपको मिल गई होती तो आपकी फीलिंग क्या होती? अगर आप इस फीलिंग में रह रहे हो तो वो फीलिंग की वजह से वो चीज आपकी हो जाएगी। एंड योर विश विल ऑब्जेक्टिफाई इटसेल्फ। तो दुनिया में कोई भी चीज कोइंसिडेंटल एक्सीडेंटल नहीं है, हर चीज कोई ना कोई विश या विल कर रहा है। ये तो हमने पहले पढ़ लिया। तो आपकी विश और विल क्या है, और आप उस बारे में कितनी एनर्जी दे रहे हो फीलिंग्स को। याद रखिएगा ये 3 स्टेप जो हमने पहले पढ़े ना, 3 स्टेप्स मेक योर विश कम ट्रू के अंदर 3 स्टेप पढ़े थे हमने, ये उन 3 स्टेप्स की बात कर रहे हैं। आप कितना फील कर रहे हो उस चीज को। जितने भी ये बहुत बड़े बड़े साधु महात्मा होते हैं, जैसे किसने बोला कि जब वरदान नहीं मांगते कि जैसे मेरा बच्चा ठीक कर दो, किसी को बीमारी है मेरा बच्चा ठीक कर दो, ठीक है। अब इन्होंने क्या करना होता है, ये जो साधु महात्मा बड़े बड़े जो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो ये इसी को प्रैक्टिस कर करके बनते हैं पावरफुल। तपस्याएं होती हैं इन लोगों की बहुत जबरदस्त, इनके आभा मंडल होते हैं। तो आभा मंडल में पावरफुल और है इनके। तो इन्होंने क्या करना होता है, बस अपने दिमाग को शांत करते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल पे ले जाते हैं और उस चीज को फील करते हैं। फील करते हैं कि जैसे बच्चा है तो ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है, खेल रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है, बहुत खुश हो रहा है, इसकी माँ खुश हो रही है, इसके पापा खुश हो रहे हैं, सब लोग बहुत बहुत खुश हो रहे हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं कि वाह वाह बच्चा ठीक हो गया, बच्चा ठीक हो गया, वाह 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 वाह। जो भी इन्होंने सोचा होगा, ये कुछ सेकंड तक उस चीज को कॉन्सेंट्रेटेड अपने अपने सिस्टम के अंदर फील और मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। और जैसे ही वो करते हैं, ये देखो जब भी कोई आप वो 1 सेकंड देखो, हमें बोलने में टाइम लग रहा है, जितने ये महान लोग होते हैं, तपी लोग होते हैं, इनकी तो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस होती है। तो यही तो 1 सेकंड में कर लेते हैं ना, उस फील को फील कर लेते हैं ये लोग कि वो जगह हो रही है तो फील कैसे होगी। तो वो फील करते हैं और वो जो भी इनका मंत्र वगैरह होता है वो उसको उसके साथ एसोसिएट कर देते हैं। जैसे हमारा मंत्र क्या है, थैंक यू, इनका जो भी होता होगा तो वो थैंक यू को एसोसिएट करके उस चीज को फील कर लेते हैं और आंख खोलते हैं, चीज हो जाती है। कभी सुना है आपने ये? कभी पास्ट में किसी मूवी में, कभी किसी ग्रंथ में, ये जो आपकी माइथोलॉजी होती है, तो सुना आपने कभी ऐसी चीजें लोग कर लेते थे पुराने, जो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे। ओके, ये चीजें होती हैं, ये सच में होती हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैं ये नकली लोगों की बातें नहीं कर रही, मैं ड्रामेबाज पाखंडी लोगों की बातें नहीं, सच में भी होती हैं ये बातें। ओके, और ये आप अपने लिए तो कर सकते हो कम से कम। भाई औरों को करना तो बहुत ज्यादा पावर चाहिए होती है किसी और के लिए करना, तो ये तो बहुत बड़े बड़े मतलब सच में महात्मा लोग होते हैं। महात्मा मीन्स महान आत्मा, तो कर लेते हैं। साईं बाबा है, बड़े बड़े लोग जो होते थे। तो पर आप अपने लिए और अपने घर वालों के लिए अगर करना चाहते हो तो करो ना प्रैक्टिस। फिर मैं कह रही हूँ देखो, आपका ऑरा बनेगा, पहले तो अपने लिए ही बनेगा ना ऑरा। अब आपका ऑरा एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, फैल रहा है, तो इसमें आपके बच्चे भी आ सकते हैं, हस्बैंड भी आ सकता है। आप उसके लिए भी कुछ भला कर लो, उसका भी भला कर लो। आपका ऑरा और एक्सपेंड हुआ, अपने पूरे टब्बर के लिए भला कर लो, और एक्सपेंड हो गया। अरे भाई पूरे मोहल्ले का भला कर दो, उसके बाद और एक्सपेंड, पूरी सिटी, पूरी सिटी आपके आप वहां पैदा हुए, उसने पूरा मथुरा तर गया, पूरा वृंदावन तर गया, पूरा अयोध्या तर गया कि आप वहां पैदा हुए। वहां आपने देखो पूरी स्टेट को उधार कर दिया आपने। आप भैया और एक्सपेंड करो, पूरे इंडिया को उतार लो, कि आप जितना को भला करना चाहते हो कर लो, आपकी चॉइस, करो ना प्रैक्टिस। पर बोलने से या करने से नहीं, इसकी प्रैक्टिस में घुसो। यहाँ पे लिखा हुआ है सामने, ठीक है। एंड यू कैन ऑब्जेक्टिफाई एवरीथिंग दैट यू वांट फॉर योरसेल्फ फॉर द पीपल अराउंड यू। पर सिर्फ क्वेश्चन पूछने से, चैप्टर्स को समझने ना समझने, इसके ऊपर बात सारी सारी आ जाती है कि आप प्रैक्टिस कितने करोगे इन चीजों की। और ये बहुत डीप प्रैक्टिस होती है। तो अभी याद 8:32 अंजलि, आर यू स्लीपिंग? नो मैम, मैं मौका देखी थी। रीडिंग का टाइम नहीं मिला तो मैडम मैं तो सो ही जाती हूँ सुबह। अच्छा क्या कर रही थी?
Sarojit, thank you very much everyone for being in this work and in this practice. Thank you for your time, for your listening. आप में से काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मैडम कब मिल रहे हैं, इस महीने मिल रहे हैं. तो हम सोच रहे हैं एक ना महीना पूरा ग्रैटिट्यूड मंथ मनाते हैं, क्योंकि दिवाली आने वाली है. सब लोगों की जिंदगियों में खुशियां बढ़नी चाहिए इस समय. अपने आप को खुशियों में रखो, ग्रैटिट्यूड में रखो. तो वी आर प्लानिंग कि सितंबर में, तो एक्चुअली हमारा बर्थडे मंथ भी होता है, तो हम वैसे भी मनाते हैं हर साल. तो हम सोच रहे हैं सितंबर मंथ को हम ग्रैटिट्यूड मंथ की तरह मनाएंगे. और हम कुछ करेंगे. अगर आप दिल्ली या आसपास रहते हो तो हम हफ्ते में 1-2 बार मिलेंगे भी शाम को. मतलब वी कैन प्लान समथिंग, सम डिनर्स टुगेदर. वी ऑल, जितने भी ग्रुप वाले हैं सब इकट्ठे एक जगह पे इकट्ठे हो. ब्रिंग योर डिनर्स अलोंग विद एंड पॉटलक करके, एंड ताकि आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी बढ़नी शुरू हो, ताकि हर किसी की जिंदगी में जो पॉजिटिविटी बढ़ रही है, पैसों की या किसी भी चीज की, ताकि दिवाली तक आपकी जिंदगी में बहुत स्पीड के अंदर व्हाटएवर यू वांट यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग. तो ठीक है, कल या परसों तक शायद बातचीत चल रही है यानी कि किसी से, तो हम सब लोग फाइनल कर लेंगे कि कैसे हफ्ते में 1-2 बार मिलना इज गुड फॉर हेल्थ. ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन मिले, ऑफलाइन वाले जो आ सकते हैं जरूर मिले. तो सेंटर हमारा गुड़गांव ही रहेगा. गुड़गांव में हमारे पास जगह है, तो वहीं पे बेटर है, वहीं पे मिलेंगे. टाइम क्या रहेगा, दिन क्या रहेगा, वी विल डिसाइड टुगेदर. बट मेक श्योर एवरी वीक एटलीस्ट वंस वी मीट टुगेदर, वी डू ग्रैटिट्यूड टुगेदर. हर कोई अपने अपने कोई ना कोई ग्रैटिट्यूड सॉन्ग लेके आओ, कुछ ना कुछ अपना शेयरिंग लेके आओ. ग्रैटिट्यूड सॉन्ग मतलब अगर डीजे में डांस भी कर रहे हो तो नॉट लाइक मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ऐसे वाले गाने. सॉरी, मतलब कुछ ग्रेटफुल, समथिंग लाइक आई एम ग्रेटफुल फॉर, या कुछ भी अपने अपनी चॉइस के गाने ढूंढो. ठीक है, तो वी विल डू ग्रैटिट्यूड इवनिंग. इसका नाम ही यही होगा, ग्रैटिट्यूड इवनिंग. तो जो आप डिश भी ला रहे हो तो व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर, क्यों खाना है हमने, इसमें ऐसा क्या है आप जिसके लिए ग्रेटफुल हो. जिन जिन लोगों से मिल रहे हैं, व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर. तो आप मतलब कुछ ऐसा करके, तो छोटी छोटी ऐसी इवनिंग्स आप अच्छा, हम एक जगह पे स्टार्ट करेंगे. आई हाईली रिकमेंड, आप जिस भी स्टेट में हो, आप पुणे में हो, कैलकाटा में हो, प्लीज अपने अपने ग्रुप्स एक्टिव कीजिए. कैसे करना, आज हम आपको ग्रुप्स ओपन कर देंगे, वहां पे आप लोग अपने अपने डाल सकते हैं कि पुणे वाले इस लिंक के अंदर एंटर कर जाएं. सबके बने ही हुए हैं आई थिंक, पर जो नए लोग भी एंटर करना चाहते हैं, कैलकाटा वाले इस वाले लिंक में एंटर कर जाएं, ताकि उस लिंक के जो वॉलंटियर्स हैं they will have these get-togethers, and this is very good. आप दुनिया में जाओगे, हाँ, फिर वो सेम दुनिया पैसों के बारे में, अरे आजकल धंधा बहुत मंदा है यार, आजकल ग्राहक नहीं आ रहा, आजकल पैसों का बड़ा लोचा है, ऐसी बातें करेंगे तो फिर क्या फायदा आपकी सारी मेहनत का. अपने आप को ऐसे लोगों के ग्रुप में रखो, मिलो जुलो, बातचीत करो, जो कि सेम प्रैक्टिस में, जो हमेशा अपने बिजनेस के बारे में पॉजिटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव ही बोलते हैं. हालात जैसे मर्जी हो, ये हालात क्यों है आज ऐसे नेगेटिव हालात क्यों है, ये आपके पास्ट के कर्मों का नतीजा है. जो आपने पास्ट में सोचा था, बोला था, किया था, है ना. आज हम क्या सोच रहे हैं, आज हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं, पॉजिटिव सुन रहे हैं, हर चीज हम पॉजिटिव कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं. इसका फल कहाँ मिलेगा आपको आगे. पर तब तक पेशेंस तो रखो, जब तक इसका फल बाहर निकलेगा, तब तक इसको संभाल के रखना, इस सीड को. ऐसा ना बकरी खा जाए तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे मोहल्ले वाले बकरियां आ जाते हैं, तुम्हारे सपनों को खा जाते हैं. तो इसको बचा के रखना, उन लोगों के साथ ही रहना जो अपने अपने पौधों को भी संभाल रहे हैं. तो आप सब लोग ही हो जो इस दुनिया में सच में आगे बढ़ना चाहते हो. सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस प्रैक्टिस. एंड रियली जिन्होंने भी सजेशन दिया, थैंक यू फॉर योर सजेशंस, कि हमें हर हफ्ते जरूर मिलना चाहिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन, और आपस में मिलकर बातें करनी चाहिए, मिलना चाहिए, एक दूसरे के साथ और ग्रैटिट्यूड करना चाहिए. कौन कैसे ग्रैटिट्यूड कर रहा है, ऐसे शेयरिंग्स करनी चाहिए. तो हाँ, आपके आइडियाज बहुत 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 थैंक यू फॉर दिस वैल्यूएबल आइडियाज. और हम लोग आपको आज ओपन कर देंगे आपके ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप्स हैं, ताकि अपने अपने सिटी या स्टेट के लिंक्स बना लो, और जितने भी उस स्टेट के लोग हैं उस लिंक्स में एंटर कर जाओ. जो दिल्ली आना चाहते हैं हमारे साथ, तो हम तो दिल्ली रहते हैं, जो हमें बुलाना चाहते हैं मोस्ट वेलकम. जो हमें बुलाना चाहते हैं वो बुला लो, जो आना चाहते हैं वो आ लो. ठीक है, इफ यू हैव ग्रुप्स टुगेदर एंड क्रिएट an event together. So thank you very much अंजलि, थैंक यू लोकेश, थैंक यू. थैंक यू मैम. आपको कोई क्वेश्चन है क्या? So good morning everyone, and as Ashwin ma'am shared, ma'am ने share किया about gratitude weeks, but today on the occasion of Mahashivratri, we will all be meeting and we will all be practicing gratitude, because Mahashivratri में the energies of the night are very very powerful. तो हम आज रात 9 बजे से कल सुबह 7 बजे तक we will be doing gratitude practices. We are planning कि हम सारी की सारी जो मैजिक बुक की assignments हैं, overnight in slots we will be practicing that. There will be movements, there will be chanting,
So you are most welcome to join us for this celebration tonight. And आप अगर आपके कोई loved ones हैं, आपके कोई family members हैं, आपके friends हैं, जिनको so you can invite them also for this. Somebody who has no idea about the power of magic, you can invite them as well because we will take some sharings as well, and it will be a beautiful high energy night. So thank you, thank you. And अगर किसी के कोई questions हैं, sharings हैं, तो Ishchi, over to you. Thank you. Yes, any questions or sharings, please you can ask in the chat box related to today's assignment. And happy Mahashivratri to all of you. And it is a very highly charged day. आज बहुत सारे planet alignment की वजह से there is a very good energy, and it is said कि आप एक spiritually भी बहुत अच्छा है आज के लिए. आप अगर chanting करते हैं, आप अपने awareness gratitude practices करेंगे, that is a very good day for like today is a very good day to do that. It is a very high energy day. साइंटिफिकली भी आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं कि साइंस क्या कहती है, व्हाट इज शिवरात्रि एंड व्हाई इज इट सेड कि इतना ज्यादा पॉजिटिविटी इस डे पे मेंटेन करना बहुत अच्छा होता है. यू कैन आप खोलो गूगल से आप पता करो. जैसे हमारी फैमिली में भी से गूगल अंकल, बिकॉज एक फैमिली में कोई अंकल होते हैं ना जिनको हर चीज की नॉलेज है, तो हम कहते हैं कि गूगल अंकल से पूछ लो कि क्या है, क्यों है, व्हाट इज द थिंग. हैप्पी महाशिवरात्रि. आई थिंक देयर आर नो क्वेश्चंस टुडे एंड शेयरिंग्स भी नहीं है फिलहाल. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन. एंड तो सेशन जो हमारा इवनिंग का स्टार्ट होगा 9 PM, 9 बजे रात को स्टार्ट होगा. लाइव सेशन होगा जहाँ पे हम 9 बजे से लेके मॉर्निंग तक पूरी मैजिक बुक A to Z ऑल द चैप्टर्स वी विल कंप्लीट दैट साथ में बैठ के असाइनमेंट्स. एंड इट इज विल बी अ वेरी पावरफुल सेशन बिकॉज बहुत सारे हर चैप्टर एक नया वॉलंटियर आपके साथ प्रेजेंट करेगा, आपको साथ में प्रैक्टिस करवाएगा. तो वॉलंटियर्स जिन्होंने उस मैजिक बुक प्रैक्टिस से उस चैप्टर से अपनी लाइफ में जब बहुत मैजिक क्रिएट किए, तो उन्होंने वो असाइनमेंट कैसे वर्ड बाय वर्ड क्या क्या लिखा, कैसे कैसे किया, वो अपना एक्सपीरियंस आपको बता पाएंगे, है ना. अगर मुझे पता है कि अगर इफ आई एम अ वॉलंटियर में मैजिकल चेक बहुत सारे कंप्लीट हो, मैंने 20-25 चेक बनाए, 20 के 20 कंप्लीट हो गए, तो मेरे पास कोई ऐसी नॉलेज होगी और मेरे प्रैक्टिस में कोई ऐसा वे होगा जो हो सकता है अगर मैं आपके साथ शेयर करूंगा लिखवाते हुए, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एक कुछ नया ओपनिंग होगा एंड आप अपने लाइफ में बहुत जल्दी प्रैक्टिस कर पाओगे. इट विल गोइंग टू बी फिनोमिनल. आई एम टेलिंग यू, प्लीज ट्राई. अगर हो सकता है जितना भी कंफर्टेबली हो पाए, 9 बजे से लेके 6 हम वी विल बी स्टेइंग अवेक द होल नाइट. आपको जितना कंफर्टेबल लगे, वॉट एवर टाइम अलाउ, ज्वाइन इन दैट प्रैक्टिस. अपनी फैमिली को बोलो साथ में पेपर पेन लो, बैठो जो बस. एंड इट विल बी गाइडेड, जैसे हम एमएमएम में करते आनी करवाती है, एक एक लाइन बोल बोल के आपको करवाएंगे, तो सिर्फ बैठ के आपने साथ साथ लिखना है. एंड इट इज अ फ्री सेशन ओपन फॉर ऑल. सो एज मेनी पीपल एज यू कैन इनवाइट, नेबर, रिश्तेदार. आपको लगता है फैमिली में किसी को मैजिक बुक इंट्रोड्यूस करवानी थी, है ना, हो सकता है फैमिली में इंट्रोड्यूस करवानी है बट आपको समझ नहीं आता कि कैसे करवाएं, तो दिस कैन ऑल्सो एक्ट एज अ वे कि उनको एक नॉर्मली पता चल जाए. तो 9 o'clock onward, me and Annie will be introducing the magic book, and then पूरा full night we will be practicing together. It will be live, it will be on Zoom as well as YouTube पे भी लिंक होगा. आप सबके WhatsApp ग्रुप पे सब डिटेल्स आ जाएंगी. ओके, so thank you very much. Have a great day. Practice hard and say thank you for the greatest news coming my way. So thank